Start with a very simple chapter, the basic fundamental chapter of corporate accounting. So how I'm going to approach this chapter, let me have a tendency that they learn only 5% and they want to read everything till then they have a hell lot of a confusion. Why what happened now? So how I'm going to approach this chapter is, see, ये chapter का ना theory बहुत है. You have to there is a lot of theory. Then the sums will come and stuff like that. I'll go exactly the reverse order. To do sums first. Only once you have the grip over the sums, and then when we read the theory, you will be able to understand. अच्छा ये ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था. डायरेक्टली अभी थियरी चालू किया, मैं सब समझाना चालू करेगा, टेक्निकलिटी सब ऊपर से निकले. मजा आया, बहुत मजा आया. क्या एसी का एसी भी बनता नहीं है. You won't understand any of the theory till you don't know the basic core of it. So directly attack the core. चालू करेंगे हम लोग बेसिक थोड़ा बहुत थियरी एंड जर्नल एंट्रीज, सम्स, finish off all the sums, and then we bring the study material and read. I don't want the study material every day to be brought. मेरे लेक्चर में जरूरत नहीं है. नोट्स दिया है, पहले वो नोट्स खत्म करेंगे, फिर जब मैं बोलेगा तब लेके आना. तो जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे. फिर जब तक सम्स नहीं होएगा तब तक वो थियरी में से समझ में आने वाला नहीं है. भले तुमने लॉ पढ़ा है, लॉ पढ़ा है तो मतलब अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रिटन, सॉरी, रीडिंग व्हाट इज रिटन एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रिटन में फर्क होता है. माइट रीड, understand completely, you don't do the journal entries. Clear? Second thing, somehow CMA students, what I've understood over a period of time, they either don't like accounts or they are too reluctant to accounts. होता है इसलिए तो ऐसा नहीं हो सकता. क्लियर करना एग्जाम तो सभी करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है. तो तुम्हारा वेटेज कम हो या वेटेज ज्यादा हो, पर जितना है उतना तो करना पड़ेगा ना. You have a choice. You don't have a choice. फर्स्ट ओपन एक्सेप्टेड विद ओपन माइंड कि करना तो पड़ेगा. और प्रोफेशनल एग्जाम है इसलिए बत्ती भी गुल होगी. जब तक वो नहीं होएगा तब तक सीखोगे भी नहीं. दैट्स हाउ इट इज, सिंपल एज दैट. नो पेन रेस. Good. So we directly jump to the sums, but for sums also I'm sure you're already aware of it because of companies. Okay. Why do we need a company? Start with there. Company की क्या लगता है? कंपनी का भाजी वाला भी तो भाजी बेचता है, उसका भी तो खुद का बिजनेस. वो थोड़ी कंपनी बना, चार सब्जी और रखेगा वो. आज जो जगह आप नहीं है, जगह चाहिए. फायदे वो भाजी वो लोग जहाँ बैठते हैं वो उनका खरीदा हुआ नहीं रहता, वो एनक्रोच्ड एरिया रहता है. दे कैन नॉट बाय एनीथिंग बट स्टिल दे हैव लैंड. अमेजिंग. I need company. Since company limited company, talk about your company. सब नहीं किया ना थोड़ा बहुत तो. कंपनी एक्ट 2013 है ना तुम लोगों, तो बोला कंपनी लॉ है, कंपनीज एक्ट सब ग्रुप वन वाले को. सॉरी, फर्स्ट टाइम होता है चलिए. मेरा फोटे और नहीं है अकाउंट्स. लेट मी कम देयर. व्हाई डू यू नीड अ कंपनी बाय? ओरिजिनेट कैसे हुआ? पेट्रोल डाल ले, हायर कर लो. कंपनी क्यों चाहिए? एम्प्लॉयज को हायर कर लो. तो कितना मैं ऐसा सोल प्रोप्राइटरशिप का हूँ, में रहेंगे 1000-2000 एम्प्लॉयज. कंपनी partnership firms are there, they are not companies that have 4005 across the, yeah, at least जरूरी नहीं. क्रेडिबिलिटी मिलता ही रहता तो फिर या सत्यम स्कैम्स में. What do you, when you use the terms like this कि कंपनी को ग्रो करना है, what do you mean by that? You're doing a professional course. You cannot use your words and language in the way that a layman is being using. Say anything that comes. Whatever you say, have to have some sense. Don't you think so? ये चाहिए कि नहीं चाहिए? तो क्या लगता है कोई भी कुछ फालतू बोलेगा उसको ये मिलने वाला है? Then what kind of language are you people using? You don't have a choice. You'll have to start reading news. See, I understand one thing very clear. Knowledge does not have a language. The bloody papers has. Start reading.
स्टार्ट रीडिंग न्यूज़ टाइम्स देखने को पता नहीं बोल read some financial news or read some financial magazine, read novels, nothing else. Novels कभी से करो, मैं बोल बोल के थक जाता है में सम पढ़ रहे ऐसा सम खत्म पढ़ने के लिए 5 मिनट लगता है तो सॉल्व क्या करेगा 15 करने के लिए कम नहीं रहेगा तो ही प्रॉफिट आने का वरना प्रॉफिट नहीं आएगा तो एम्प्लॉय बोला जाता है तो मेंबर्स क्यों बोल रहे हो डेफिनेटली बता बता लैंग्वेज लैंग्वेज है ना बहुत नॉलेज लेकिन अगर उसको एक्सप्रेस करने को नहीं आता ना घंटा मार्क्स मिलेगा तुमको is a blunt statement. That's how it is. It has to be good. You also know how to use that English in expression, or else you're not going to be able to write any answers. More specifically for theoretical subjects as well as when you deal with accounting standards in Ind AS, your institute is legendary. You don't have complete AS, but you have introduction of Ind AS, which comes in C finally. AS का नॉलेज नहीं है लेकिन उसका एडवांस लेवल का जो इंड एस है वो है तुमको तो पिटने वाले आंसर्स अगर लिखना पड़ा डाउटफुल है लिखना उतना जाएगा नहीं इंस्टीट्यूट आगे एग्जामिनेशन बट अगर लिखना पड़ा यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट और फाइनल में तो आएगा ही आएगा फाइनल में तुमको इंड एस है ऑलरेडी टॉट दैट तभी आंसर्स लिखना पड़ेगा इट हैज टू बी इंग्लिश इट हैज टू बी आफ्टर कंसीडरिंग ऑल द नॉलेज दैट यू हैव यू शुड नो हाउ टू राइट इट हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर्स You means not only your batch, you means everyone of your generation, whether you're doing CA, CS or CM, irrespective of that. If you're doing a professional course, you'll have to learn how to speak in English, how to express yourself in English while writing also. आता सब है लेकिन लिखने को नहीं आता तो कुछ होने वाला one thing start reading second thing start speaking in English तो ये लिख पाओगे you answer me in English start in English company why you need a company so let's say business yeah let's say you start the business on your own मैंने सुने चालू किया बिजनेस भी XYZ कितना पैसा इन्वेस्ट बिजनेस चालू करना है कंपनी नहीं बिजनेस करने का है कंपनी छोड़ उसको कंपनी को मत पकड़ो 50,000 क्या किसी एक बंदे को या बंदी को अगर बिजनेस करना है तो एक इंडिविजुअल कितना पैसा दे सकता है अभी अमीर हो 10 करोड़ 20 करोड़ एक लिमिट है उसका आगे वो जा पाएगा नहीं इंडिविजुअल हैज हिज ओन लिमिट लेकिन फिर भी और ग्रो करना है यस एवरी बिजनेस इज डन विद द इंटेंशन ऑफ growing in form of finance growing in form of turnover growing in form of profits you have to grow that's a normal human tendency क्या करेंगे दोस्तों को लेके आओ पार्टनरशिप चलो सेकंड लेवल सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया तो पार्टनरशिप में 20 पार्टनर्स बनेंगे 10 पार्टनर बनेंगे इसका भी एक लिमिट होगा 100 करोड़ 200 करोड़ बस 2 लाख करोड़ तक तो पहुंचना मुश्किल है 50,000 करोड़ एंड 2 लाख करोड़ एंड ये इतना फंड्स तो पार्टनरशिप ट्रस्ट भी नहीं दे सकते सम एक्सटेंट देन केम द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी एज द people wanted to grow further people wanted to grow means चाहिए फंड्स चाहिए के बिना कोई भी ग्रोथ पॉसिबल नहीं so whenever you say business grow नहीं होता funds for requirement of funds you have to expand yourself how will you do it एक जन का तो लिमिट है दिमाग लगाया क्या दिमाग आया बोलो देख एक जन के पास से 1 करोड़ लेना थोड़ा मुश्किल है लेकिन 1 करोड़ लोगों के पास से 1 रुपया लेना इजी है ना लेट्स ब्रिंग एवरीवन टुगेदर there came the concept of company we'll have a institution known as what company तो एक्ट बैक छोड़ो पहले कंपनी बना इसकी वजह साथ में मिलके कमाने का है सब लोग साथ में मिलेंगे सबसे 1-1 रुपया देंगे तो 1 करोड़ ना दे रिस्क को 1 रुपया तो 10 रुपया तो दे सकता है रिस्क कम है उसका लेकिन हम लोग क्या करेंगे वॉल्यूम करेंगे मतलब नंबर ऑफ पीपल बढ़ा देंगे अपने को जितना पैसा मांगता है उतना मिलेगा लेकिन इंडिविजुअल रिस्क कम है 1 करोड़ देगा तो इसको 1 करोड़ से डूब जाएगा ये 10 रुपया देगा 10 रुपया डूब गया तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसको यस सर खाली पाव खाएगा वड़ा नहीं खाएगा और क्या गेटिंग इट 1 करोड़ डूब गया ऐसे आर गेटिंग इट so there came the concept of company to get the funds individually at a lower amount but include a lot of people obviously because now this is the key part कि भाई
क्या कर रहे हो, पब्लिक के पास से 1-1 रुपया, 10-10 रुपया, 100-100 रुपया ले रहे हो पब्लिक के पास से। पब्लिक का पैसा है तुम्हारे, तो जितना तुम्हारे पास पब्लिक का पैसा रहेगा उतना तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा हो जाता है कि पब्लिक का पैसा डुबाओ। एक्ट आ गया, safeguard the interest of people. I'm going very superficial, इसमें नहीं जा रहा, just a story sort of a thing. So there came the act. Act is basically there to safeguard the interest of general public या the investor part. इन लोगों ने उसको पैसा दिया, उसका पैसा डूबना चाहिए नहीं। With that motive, the whole act is there. Everywhere you will see that. अगर कुछ लॉ में सब एक्ट में है ना, तो ये सोचने का कि अगर ये नहीं होता तो पब्लिक को नुकसान कैसे होता। Understand why that provision is there. Are you understanding? Because that is there to protect them. अगर ये हटा दो तो उसकी बत्ती गुलोएगी। देख लो कैसे बत्ती गुलोएगा तो समझेगा कि ये पर्पस क्या है इसका, हाउ इज इट वर्किंग। एटलीस्ट 90% ऑफ द टाइम लॉजिक काम आता है। तो ऑब्वियसली फॉर मोर फंड्स कंपनी का कॉन्सेप्ट बना, फिर एक्ट आया, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्ट यू आर सपोज टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर्स ऑफ रेजिंग द फंड्स, ऑफ यूटिलाइजिंग द फंड्स, ऑफ मेंटेनिंग द अकाउंट्स। अगर आप थियरी पढ़ते हो स्टार्टिंग में तो उसमें कौन सा अकाउंट्स मेंटेन करने का, कैसा बुक्स मेंटेन करने का, वो सब अभी नहीं चाहिए। पहले अकाउंट्स क्या होता है वो समझो, बाद में देखेंगे। अंडरस्टैंडिंग? तो डोंट ट्राई टू गो होम एंड स्टार्ट रीडिंग द थियरी, कुछ समझ में नहीं आएगा। जितना करवा रहा हूं उतना चुपचाप पहले मास्टर करो, बाद में वो सब में घुसना। डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट, नॉट 11th, it is not 12th, it's some professional exam, especially you're dealing with me, so don't try to act smart. Okay, they will tell you. बता दिया कि नहीं बता दिया, डरा दिया कि नहीं सब लोग को पता है। तो आज क्या बोला तेरे को, डरा कि नहीं डरा? बट तो अभी कंपनी का एक्ट बनाया, तो हाउ टू रेज फंड्स, मैंने इससे 10 लिया, सबसे 10-10 रुपया लिया। तो तू मैं 10 रुपया देगा तो तू रिटर्न में चाहिए, गोबर ही करेगा। आज 10 रुपया दिया, आज तेरे को डिविडेंड दूं मैं, मुर्गियों में अंडा दूं तेरे को इंस्टेंट। आज 10 रुपया दिया तो कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या चाहिए तेरे को आज? व्हाट्स द नेम? बीच में अगर दूसरी बार बोला तो घर पे भेजेगा तेरे को। सिंपल रूल, जब किसी को सवाल पूछा जाता है तो इंटेंशन इज नॉट टू टॉर्चर, इज टू स्टार्ट अ थॉट प्रोसेस इन दैट ब्रेन। When someone else interrupts that thought process gets hampered. So you might feel I'm joking. I'm not joking. I'm trying to trigger a thought process. So no interrupting when I'm talking to some student. So define asset. Define asset. Accounts किया ना तूने इतना, 11th-12th में किया ना बेटा? What is asset? 10 रुपया दिया होगा, 100 रुपया दिया, तुमको तो एविडेंस चाहिए कि भाई तेरा पैसा तेरे पास है और तेरे को दान नहीं दिया है, वापस भी चाहिए। तभी देगा, कभी भी दे, लेकिन देना तो पड़ेगा। कंपनी बंद होएगा तभी दे, लेकिन देना तो पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कि चैरिटी कर दिया है, वो चैरिटेबल ट्रस्ट थोड़ी है, डोनेशन थोड़ी दिया है, कैपिटल इन्वेस्ट किया। मैं 10 रुपया देके मैं उसको ये नहीं बोल रहा है कि ये लोन है तेरा, मैं ये नहीं बोल रहा है कि डोनेशन है तेरा, मैं बोल रहा है कि तू 10 रुपया दे और कंपनी का मालिक बन। यू आर नॉट अ लेंडर, यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी। Yes, so pay, give me 10 rupees and you become the owner. मतलब ठीक है, ले 10 रुपया ले, लेकिन मेरे को ऐसा फील कैसे आएगा कि मैं ओनर है? मेरे पास क्या है? कुछ नहीं है ना, मैं तेरे को देता है, रिसीट देता है ना, पीस ऑफ पेपर आई विल राइट कि उसने 10 रुपया दिया है। क्या मैं बोलेगा कि ये जो पीस ऑफ पेपर है इसका वैल्यू 10 रुपया है, इससे 10 रुपया लिया, ये 10 रुपया उसको दे दिया। नो, दैट पीस ऑफ पेपर इज बेसिकली कॉल्ड एज अ शेयर। शेयर अभी तो वो पीस ऑफ पेपर रहा नहीं है, सब डीमैट फॉर्म में आ चुका है। नो, तो ये बेसिकली 10 रुपए देने के बाद जो उसको सॉर्ट ऑफ रिसीट देगा, दैट इज बेसिकली अ शेयर। बट टेक्निकली दैट्स नॉट हाउ इट इज डिफाइंड। हाउ इट इज डिफाइंड टेक्निकली, हाउ डू यू पुट इन वर्ड्स व्हाट इज शेयर? ये तो समझने के लिए था, लिखेंगे कैसे? ये थोड़ी सब लिखेंगे यार, ये 10 रुपया दिया ना, ऐसा थोड़ी लिखेगा मैं डेफिनेशन। हाउ विल राइट व्हाट इज अ शेयर? ऐसा डेफिनेशन कि शेयर इज अ पार्ट ऑफ द कंपनी, इम्पॉसिबल है। किधर पढ़ा था तुमने बेटा ये? I told you, knowledge does not have a language. मराठी में भी अगर तूने बरोबर पढ़ा होता तो मराठी में भी मला कळतं कशात, कंपनी मध्ये की शेअर कॅपिटल मध्ये? You didn't use that term. Share is a share in the share capital of the company. You never told that. Then you cannot blame you are in Marathi and Hindi. Don't try to play games with me.
and drag you in every corner of the earth and dig your grave over there. Excuse, bloody excuse. Simply having self-pity, nothing more than that. दया आता तुम मराठी में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में. You have to understand it. If you understand, you can say it in any other language in a proper way. तो सामने वाला समझेगा. 4 शब्द ज्यादा लगे लेकिन समझेगा सामने वाला बरोबर. नहीं समझाया उसको, तुम कैसे एक्सप्रेस करोगे? खबर कि नहीं? I've been through all those things. What is share? Share is a वो भी कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन नहीं. तो कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में पढ़ना. अपने सिंप्लिसिटी से के लिए वी कीप इट लाइक दिस. शेयर is a share in the share capital of the company. In other words, all the shares combined together is called a share capital. क्योंकि मैं 10 रुपया कैपिटल के नाम से लिया, मैं बोला 10 रुपया दिया और तू मालिक बन. अगर तू मालिक है और 10 रुपया दे रहा है तो फॉर मी इट इज कैपिटल एंड यू आर द ओनर. और मेंबर, member only and only means the bloody goddamn shareholder or the owner of the company. Employees are never ever called member. कुछ भी चलो के वो प्यून is member of the company. member means shareholder. समझ में आ रहा है? कुछ तो मुकेश अंबानी कर उसके चपरासी में कुछ तो फर्क करो बेचारे पे. तो मैंने से एम्पायर खड़ा किया, बोलता ये दोनों मेंबर है. ऐसा नहीं है. Member term is used only for shareholder. So what is share? Share is the share in the share capital of the company, and all the shares combined together is called as share capital. Now, as we said that because of this process of raising the funds from the general public, there has to be certain code of conduct. There has to be certain rules and regulations that you have to follow. That every company has to follow. ऐसा नहीं है कि जाके actually ऐसा थैला लेके जाएगा चले, ऐसा नहीं होता. There's a procedure through which you have to raise the funds, where all the institutions like ROC and everyone is involved. If you're listed, then SEBI is involved. Everyone is there. Sir, the procedure क्या है? In short, procedure में भी अपने को जाने का जरूरत नहीं, because we are accountant. We are not the legal procedure. थोड़ा बहुत जो जरूरत है उतना ही पढ़ेंगे, बाकी तुम लोग लॉ में पढ़ लेना. मेरे को फिलहाल जो अकाउंट्स और सम्स में जो जरूरी है मैं उसी को टच करने वाला है. बाकी आई एम नॉट गोइंग इनटू एनी काइंड ऑफ डिटेल एज ऑफ नाउ. तो वो बोलता है कि देख, अगर तुमको शेयर इशू करना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल obviously you are a registered company, taken the permission from the right institute like ROCs. What ROCs? सबको पता है? ये पूरा रो साइलेंट है. What is ROC? ROC is Registrar of Companies. खाली फुल फॉर्म ही मालूम. क्या करता हो? रजिस्टर और इनकॉर्पोरेशन एक होता है. क्या बात बना मेरे? चारों सेंटेंस का मीनिंग एक ही होता है कि वो रजिस्टर कर और रजिस्ट्रेशन करेगा. और दे हैव लॉट ऑफ प्रोसेस. बहुत कुछ सबमिट करना पड़ता है. एनुअल रिटर्न सबमिट करना पड़ता है, बोर्ड मीटिंग का डिटेल सबमिट करना पड़ता है, मिनट सबमिट करना पड़ता है. दुनिया भर का उनका ड्यूटीज है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. बट फाइन, दैट्स बेसिकली यू कैन से इट्स अ पैरेंटल इंस्टीट्यूशन हु एक्चुअली रजिस्टर्स द कंपनी. जब हम बोलते हैं कि कंपनी रजिस्टर करना है तो वो किधर करो, तो वो इंस्टीट्यूशन को आरओसी बोलता है. बट आरओसी इज नॉट लिमिटेड ओनली टू दैट, इट हैज लॉट ऑफ अदर थिंग्स. तो वो मैं पढ़ लेना. एसपी कितना जनरल लिया था? नो डिस्ट्रिक्ट. SP students has a big advantage in these things because they have done the procedure, right? Done the issue of shares and as securities premium and everything. You have done the procedural aspects, बराबर ना? तो ये सोच के मैथ्स डिफिकल्ट है तो एसपी लेते हैं, पर एसपी का एडवांटेज कभी नहीं समझा तुमने. ह्यूज एडवांटेज है वो स्टूडेंट्स को जिन्होंने एसपी 11-12 में लिया था. अगर वो सीए, सीएस या सीए में करते, सब जगह कॉर्पोरेट अकाउंट्स आएगा. वो कॉर्पोरेट अकाउंट्स ही थियरी में था खाली, बट अगर वो याद है एडवांटेज, याद नहीं चल. तो you have to go and register with the ROC. So ROC का परमिशन लिया, उसके बाद there will be something like a prospectus that will be issued. हम सुना है prospectus? एक डॉक्यूमेंट रिलीज करेगा कंपनी कि भाई पैसा क्यों चाहिए, ठीक से ले रहा है ना तू. पता चले तेरे को पैसा लेके स्मगलिंग करना है या पैसा लेके कोई इलीगल काम करना है, तो अलाउ करेगा. यू हैव टू गिव अ प्रॉपर रीजन टू द गवर्नमेंट के व्हाई आर यू टेकिंग पब्लिक्स मनी एंड दैट टू इन द अमाउंट ऑफ लाइक 100 crores and 1000 crores. ह्यूज मनी लेके करना क्या? यू मे बी डूइंग एक्टिविटीज अगेंस्ट द नेशन इटसेल्फ.
वो सब अलाउ नहीं कर सकते. सो दैट हैज टू बी अ प्रॉपर परमिशन टेकन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन सेइंग दैट व्हाई आर यू रेजिंग द फंड्स. तो उसका रीजंस एंड कितने में इशू कर रहे हैं वो सब धीरे धीरे सब पता चलेगा, पर वो प्रोस्पेक्ट रहेगा. ये इशू में क्या इशू कर रहे हैं हम लोग? शेयर्स. क्या प्रोस्पेक्ट शेयर्स इशू कर क्या कर रहे हैं? शेयर्स इशू करने के या उसके प्रोसीजर में घुसने के पहले देयर आर फ्यू मोर डेफिनेशंस दैट यू हैव टू गेट ग्रिप ओवर. फर्स्ट थिंग इज दिस फेस वैल्यू. दैट जस्ट शांत करो. तो लगता है कि उनको ज्यादा आता है. व्हाट्स योर नेम? एक बैच में खाली होम है, कार नहीं है. So, what is face value? You cannot issue it at premium. But you only just said that you issue the shares at a price. So you are contradicting your own answer. तो बट ये क्या है? ऐसा थोड़ी है. Discount. Now you are sorry for second. सही होता है. फर्स्ट ब्रेकअप के बाद सब लोग यही बोलते हैं अभी नो अफेयर टिल सेकंड डज नॉट हैपन. तो या व्हाट इज फेस वैल्यू? या तो वैसा हाँ. What is fair value of the share? That's not the value of the share. What is the issue price of the share? That is not the value of the share. Only face value is the value of the share because the word value comes in that. मैंने इसे 10 रुपया लिया था. मैंने पीस ऑफ पेपर पे क्या लिखा? 10 रुपया लिया ना. तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि 10 रुपया लिया और 10 रुपया का रिसीट. मैंने पहले रिसीट छाप कर रखता है कि ये रिसीट 10 रुपये का है. इसका वैल्यू 10 रुपया है. स्टैम्प पेपर देखा? स्टैम्प पेपर वैल्यू पहले से रहता है ना. 100 रुपए का स्टैम्प पेपर, 1000 रुपए का स्टैम्प पेपर. ऐसे शेयर भी रहता है. शेयर का फेस वैल्यू फिक्स होता है स्टार्टिंग से. ये 10 रुपए का फेस वैल्यू, 1 रुपए का फेस वैल्यू, 100 रुपए का फेस वैल्यू. यस सर. फेस वैल्यू सिंपली डिफाइंड एज वैल्यू ऑफ द शेयर इज अपीयरिंग ऑन द फेस ऑफ इट. इसलिए उसको नाम दिया है फेस वैल्यू. वैल्यू ऑन द फेस. वैल्यू ऑन द फेस ऑफ इट. It's not necessary that you will be taking only 10 rupees because the face value is 10 rupees. No, it's not like that. But the value which is imprinted or printed on the face of the share is known as face value. What is so great about this face value? Face value is basically the liability of the company. समझो मैंने ऐसे 10 रुपया लिया और मैं अगर कंपनी बंद हो रहा है तो कम से कम 10 रुपया देना ही पड़ेगा. कम से कम अगर पैसा रहा तो कम से कम 10 रुपया देना पड़ेगा. इतना तो देना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं कि पैसा है फिर भी मैं तेरे को 8 रुपये देगा. नहीं, ऐसा नहीं चलेगा. Are you getting it? Second thing, if you think from the shareholder's point of view, mathematics. Face value is the value of the share which is printed on the or which is there on the face of the share. As Om said that shares are issued at face value. What do you mean by that? मैं सबसे 10-10 रुपया ले रहा है. Yes sir. और shares देते जा रहा है 10-10 रुपये. That's the issue of shares at face value. Face value का और एक नाम होता है known as par value. Par value बोलो, face value बोलो, it's one and the same. Then there is one more thing, something known as issue price. Issue price is basically the price at which the shares are actually issued. Face value is what is printed over here. And issue price is at which the shares are actually issued. Say for example, कल उठ के रिलायंस एक नया कंपनी बनाता है और उसका शेयर इशू करने के लिए आता है. उसका फेस वैल्यू 10 रुपया. Yes, will you all be interested? Mani is the chairman. Will you be interested? तो डिटेल्स दूं क्या कंपनी क्या करेगा क्या नहीं. एग्जाम्पल है भाई. तो जैसे बहुत सारा जन इंटरेस्टेड रहेगा ना तो डिमांड ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? तो डिमांड ज्यादा है तो मुकेश अंबानी क्यों लेगा? बोलेगा बहुत जन लाइन में खड़ा रहेगा. 20 रुपए आई विल इशू एट 20 रुपीज. आई विल नॉट सेल इज अ रॉन्ग वर्ड बट आई विल इशू एट 20 रुपीज. इसका फेस वैल्यू कितना है? लेकिन वो इशू कितना? 20 rupees is the issue price. Are you understanding this? So what is the issue price? Issue price is the price at which the shares are issued. Face value is the value which is printed on the face. But issue price is the price which is actually at which the shares are issued. Opposite of this, contrary to this, तो ऐसा एकदम अननोन कंपनी है, कभी नाम भी नहीं सुना. सर नो, वो आके बोलता है मेरा शेयर का वैल्यू है ना फेस वैल्यू 10 रुपया 10 रुपया दो. बोले भाई
मैं जानता नहीं है तुम, आई डोंट नो यू, आई हैव नो रेपुटेशन, आई डोंट नो योर डायरेक्टर, योर चेयरमैन, आई डोंट नो एनीवन, आई वोंट पे यू 10 रुपीज। तो ठीक है, एक काम कर, तो 8 रुपये देता है डिस्काउंट। तो मैं तो ना बोला, मेरी बीबी ने खरीद लिया डिस्काउंट, तो उसने 8 रुपये में शेयर खरीदा। सो 8 rupees अगेन बिकम्स द इशू प्राइस, द प्राइस एट विच द शेयर्स आर इशूड। अगेन इट इज नॉट द फेस वैल्यू, so your issue price may be different from the face value and it may be equal to the face value also। पहले एग्जांपल में हम लोग ने 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू किया, दूसरे में 10 का शेयर 20 में किया, तीसरे में 10 का शेयर 8 में किया। तो योर इशू प्राइस मे और मे नॉट बी इक्वल टू फेस वैल्यू। इशू प्राइस इज द प्राइस एट विच द शेयर्स आर एक्चुअली इशूड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? इसको और अगर सिंप्लीफाई करना है ना, दवाई खरीदने गए हो कभी केमिस्ट में, एमआरपी 100 रुपये है, 100 रुपये देते हो? देते हो? से 80 दिया, 80 रुपीज दिया, तो एमआरपी इज द फेस वैल्यू, 80 रुपीज इशू प्राइस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और फिर आप वापस आते आते गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए 100 रुपए का और चॉकलेट भी खरीद। मम्मी को बोला दवाई 180 का, 180 इज ऑल्सो इशू प्राइस बट फेस वैल्यू स्टिल कैन बी इधर मोर देन दैट और द इशू प्राइस कैन बी लेस देन दैट। अंडरस्टैंडिंग दिस? यस और नो? श्योर? क्योंकि इसके ऊपर ही सारा समझाने वाला है। रियल गेम विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। व्हाट इज फेस वैल्यू, व्हाट इज इशू प्राइस? ओके, चलो, once you are done with this types of, हम लोग ने क्या बोला, 10 रुपया लेके उसको एक शेयर देना है, शेयर सर्टिफिकेट बोलो या शेयर देना है, बराबर है। एज पर कंपनीज एक्ट देयर आर 2 types of shares the company can issue। लॉजिकली देयर आर 3, वी डिस्कस, स्टार्ट विद 2, तीसरा अगर तुम्हारे सिलेबस में कहीं मिल गया तो डिस्कस करेंगे, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट जोन वाला है। मोटा मोटी देयर आर 2 types of shares that a company can issue। हाँ बोलो, ग्रेजुएट्स विल एंटर से फ्रैंक आंसर नहीं होता है ना, इंस्टेंटेनियस आंसर जब सवाल पूछा तभी नहीं आया तब मैं ग्रेजुएट नहीं, खुश हो गया फिर बाजू। वेरी गुड, डिफाइन देम। preference shares are what? Preference share get higher. Are they owner or no? Then what kind of answer is that? Equity is owner, preference share बोला ही नहीं, yes no mean? There are 2 types of share as per Companies Act, or as per Companies Act a company can issue 2 types of share, equity shares, in fact let's preference shares and start with preference share। what are preference shares, how it is defined? टेंशन नहीं, ग्रेजुएट प्रेफरेंस शेयर्स का होता है, बोलो बबुआ देव। हाँ बट और चिप चिप, डोंट बी ओवर एंथुजियास्टिक। अच्छा इधर कोई मुंडी लाने की जरूरत नहीं है, तो कोई इंडिकेशन देने की जरूरत नहीं है, सब लोग अपना अपना सोच। पर आंसर राइट भी रहेगा ना तो मैं एग्री नहीं करेगा। एक जन को अगर उसको हाँ बोल दिया तो बाकी सब सोचना बंद कर देंगे, नहीं करेगा एग्री, मैं काउंटर आर्ग्यू करता रहेगा। राइट आंसर जब आएगा तो आएगा, तेरा राइट रहेगा तो, नहीं रहेगा तो करेक्ट कर। डोंट एक्सपेक्ट कि मैं ऐसा बोला रहा हूँ बहुत अप्रिशिएट, वेरी गुड, चल निकल। अरे गेटिंग इट? appreciation is not going to take you anywhere much, only way of thought process, no goody thing, that kind of। हाँ तो क्या बोल रहे थे तू, हो गया तेरा डेफिनेशन का? हाँ पढ़ देने, हाँ से fish preference is not the one। हाँ this one graduate फाउंडेशन कौन नहीं आता Contract Act. It's all good. graduate। चलो, more you are excited the more you are vulnerable to, remember that, normal, be casual, relax। The preference shares are defined as those shareholders
What is shareholder? The person who is holding the share or the institution who is holding the share is a shareholder. तो इसके पास शेयर है तो इज अ शेयर होल्डर, इसके पास डिबेंचर है तो डिबेंचर होल्डर, इसके पास प्रेफरेंस शेयर है तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इसके पास इक्विटी शेयर है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर. सुनो, so what are preference shares? The preference shares are the shares which have a preference over other shares. Language is as per Companies Act. Don't try to dilute that unnecessarily. Preference shares are those shares which have a preference over other shares. दो ही तो शेयर है ना, अदर मतलब बट इक्विटी लिखने का नहीं. Over other shares. They have two types of preferences. Preference point number one. They have a preference of receiving dividends at a fixed rate or a fixed amount. Now, what do you mean by dividends? Dividend मतलब, let's say you are a partnership firm. If you are a partner in a partnership firm, तुमने capital invest किया है कि नहीं किया है? क्या सोच के क्या मिलेगा तुमको? Profits मिलेगा. वो returns जो भी है वो returns को बोलेंगे क्या? Profit मिलेगा. Profit withdrawn. अगर आपने किसी शेयर में इन्वेस्ट किया है, शेयर में नहीं, अगर आपने कहीं पे एफडी बनाया है, फिक्स डिपॉजिट बनाया है, तो कुछ रिटर्न्स मिलेगा. क्या बोलेंगे उसको? फिर इंटरेस्ट. वैसे अगर किसी शेयर कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया है तो उस पर जो रिटर्न्स मिलेगा, जो प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड. वो सेम है, प्रॉफिट ही है, बट इट इज टेक्निकली कॉल्ड एज डिविडेंड. इट्स अगेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. जैसे पार्टनरशिप में तुमने विड्रॉल ऑफ प्रॉफिट देखा है, ड्रॉइंग्स देखा है, वो भी ये ड्रॉइंग्स ही है. इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गॉड डैम प्रॉफिट व्हिच इज टेक्निकली कॉल्ड एज डिविडेंड्स. So in simpler words, dividend is written on share capital. Dividend is written on share capital. Yeah, amount invested in some other company or in shares of some company. Here, simple words में written on share capital. Yes, sir. So preference shares have a preference to receive dividend before the other shareholders get it. In simpler words, let's say कंपनी ने ना 100 रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया. अब ये नेट प्रॉफिट है किसका? शेयर होल्डर्स, सब शेयर होल्डर्स का. प्रेफरेंस इक्विटी सब लोग मालिक ही है. किसी को ज्यादा प्रेफरेंस है, किसी को कम प्रेफरेंस है, लेकिन है शेयर होल्डर्स. तो ये सनो, एक घर पे एक डॉटर है और एक सन है. यस, सो किसी चीज के लिए डॉटर को प्रेफरेंस दिया जाएगा, किसी चीज के लिए नहीं. उसको Are you getting it? Certain things के लिए girls will be preferred, other things के लिए he is चल काम कर चल. Understanding? So equity is one such guy. He is a guy. वो सबसे लास्ट में खड़ा रहता है, हर चीज में लाइन में वो बेचारा लास्ट में खड़ा रहता है. Yes sir. तो preference shares get a preference in things. We said number one, 100 रुपए का अगर प्रॉफिट कमाया, अब ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो लाइन में पहला कौन आएगा? पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर गणपति बप्पा ऑफ शेयर वर्ल्ड. पहला वो हर जगह पे. अंडरस्टैंडिंग दिस? अरे यस और नो? यस. तो दे गेट अ प्रेफरेंस टू रिसीव डिविडेंड. अगर रिटर्न्स देने का 100 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दो. तो पहले हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे. यस, समझो हम लोग ने 20 रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड दिया, फिर बचा कितना? 80. ये पूरा 80 इक्विटी शेयर होल्डर्स का है. चाहे आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करो या ना करो, लेकिन पूरा 80 किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर्स. अभी इसमें से करंट ईयर में, करंट हम लोग जब ने 100 रुपए प्रॉफिट किया, तो हमने सोचा कि 80 रुपए में से 10 रुपया हम लोग इक्विटी को देंगे, तो फिर इक्विटी डिविडेंड दिया जाएगा. बचेगा कितना बेटा? ये बैलेंस शीट में दिखेगा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी किया है सर. बैलेंस शीट में दिखेगा. बोल बोल, डाउट है तो बोल. आर गेटिंग इट? तो अगर डिविडेंड लेने का है, अगर प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले किसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? प्रेफरेंस को. ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपने इक्विटी को दे दिया और प्रेफरेंस को नहीं दिया. इक्विटी को दिया है तो ऑब्वियस कॉमन सेंस है कि पहले प्रेफरेंस को मिला रहेगा. अभी ये लोग सम में क्या करेंगे, वो लोग डायरेक्टली लिखेंगे कि इक्विटी डिविडेंड 10 रुपया दिया. तो तेरे को ये समझना पड़ेगा कि अगर प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस शेयर्स है और वो इक्विटी डिविडेंड का बात कर रहा है, तो मतलब पहले प्रेफरेंस को मिला रहेगा, बाद में इक्विटी का बात हो रहा है. वो बोलेंगे नहीं वो लोग तुम लोग को पहले प्रेफरेंस दिया फिर इक्विटी दिया. डायरेक्टली बोलेंगे इक्विटी दिया है या इक्विटी डिविडेंड दिया है. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पहले प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, बिकॉज दे हैव अ प्रेफरेंस ऑफ रिसीविंग डिविडेंड ईदर एट अ फिक्स्ड रेट और अ फिक्स्ड अमाउंट. फिक्स्ड रेट और अ फिक्स्ड अमाउंट. समझो तुम लोगों ने 10 रुपया दिया है और उसने बोला था कि मैं 10% डिविडेंड देगा एवरी ईयर.
कितना टका देगा? 10% डिविडेंड देगा। तो एवरी ईयर तुमको 1 रुपया मिलने वाला है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है। अरे अंडरस्टैंडिंग? इक्विटी के केस में वो फिक्स होता नहीं है। इक्विटी ऐसे ही है, मैं बोला लास्ट में बेचारा खड़ा रहता है, गरीब आदमी मेरे जैसा। अरे अंडरस्टैंडिंग? बचा कुछ, हाँ तो मेरे को मिलेगा, नहीं बचा हाँ तो तेरे को नहीं मिलेगा। एट दिस पॉइंट वेरीफाई वन थिंग वेरी क्लियरली, जो तुम लोगों ने एक मिस्टेक किया था, किसी ने, समझो किसी साल में हम लोग ने प्रॉफिट नहीं कमाया, मैं प्रेफरेंस होल्डर्स को भी कुछ नहीं देगा। उनको प्रेफरेंस किस बात का है कि अगर मैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने आया तो पहले तेरे को देगा, लेकिन प्रॉफिट ही नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करूं? और डिस्ट्रीब्यूट ही कुछ करना नहीं तो तेरा प्रेफरेंस करके लेके क्या अचार डालू मैं? अगर डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आया तो तेरे को पहले मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं तो, प्रॉफिट्स ही नहीं है तो कुछ नहीं, तो तू कौन और मैं भी कौन, कुछ नहीं मिलने वाला है। स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि लॉस रहेगा तो भी डिविडेंड मिलेगा, नहीं, प्रॉफिट्स रहेगा तो ही डिविडेंड मिलेगा। अरे अंडरस्टैंडिंग? हाँ, प्रॉफिट्स रहा, डिविडेंड देने का है तो पहले, फिर जो बचा तो इक्विटी। तो प्रायोरिटी खाली देने में, मतलब मिलने में है कि पहला तेरे को मिलेगा, अगर मैंने दिया ही नहीं तो तू निकल। Getting what I'm saying? Yes or no? Here, they have a preference of receiving dividend at a fixed rate or a fixed amount. Amount भी हो सकता है कि every year 1 रुपया मिलेगा, every year 10 रुपया मिलेगा. That depends upon what the company has decided. Sir? सेकेंड प्रेफरेंस उनको कब मिलता है? कंपनी जब बंद होगा तब, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। अभी जब कंपनी बंद होगा तो समझो ये बैलेंस शीट है, सेट्स रहेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, लायबिलिटी, बराबर है। सबसे पहला क्या करेंगे हम लोग? असेट्स को बेचेंगे। जो असेट बेच के 1000 रुपया मिला, सब असेट बेच दिया, 1000 रुपया मिला। फिर पहले किसको मिलेगा? बाहर वाले को कि घर वाले को? लॉजिकली पहले किसको मिलना चाहिए? बाहर वाले को कि घर वाले को? क्यों? क्यों? दोनों आंसर चाहिए। घर वाले को क्यों नहीं और बाहर वाले को क्यों? मेजोरिटी विन से आंसर नहीं आने वाला है। सब लोग बोल रहे हैं, मैं मेरे लेक्चर में प्रूव करेगा, जो मेजोरिटी बोलता है वो रॉन्ग ही रहेगा, क्योंकि मेजोरिटी है ना गेस वर्क करता है, सपने देखते रहते, देख रही थी। व्हाट्स योर नेम? मदर डोंट स्लीप इन माय क्लास, डोंट ड्रीम, बी अलर्ट। कभी भी कैसा उड़ता हुआ सवाल सर पे टपके गए कहीं से भी, तो ऊपर देखते रहोगे नीचे से आ जाएगा टक करके। यू जॉइन, अल्टीमेट गोल क्या है? क्या है अल्टीमेट गोल? डाले डाले और कुछ, शादी का मिस्टर ऑफ मिसेस ऐसा क्या तो क्यों किया बेटा, क्यों ज्वाइन किया? दोस्त लोग कर रहे थे। रेप्यूटेशन? क्या रेप्यूटेशन? कुर्सी आगे खड़ा होगा, फाइनेंस फ्रॉम IIM, IIT, सब बाजू में कोई आएगा, हम ML है, हम 12th फेल है पर हम ML है, हाँ सर है। क्या रेप्यूटेशन? क्या ज्वाइन की? क्या बात है, पैसे की? तो शर्मा क्यों रहा है? बैड टू अर्न मनी, बैड टू अर्न मनी, बैड बैड टू, व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम सेइंग पैसे के लिए क्या, और क्या किया? ऐसा ना, मैं सिखा रहा पैसे के लिए करना, पैसे के लिए कर रहा, चैरिटी थोड़ी कर रहा मैं। सर क्लासेस चला रहा है वो भी पैसे के लिए, विथ लिटिल बिट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स कम्स इन विद आवर प्रोफेशन। तो पैसा कमाने का ना, सर पैसा कैसे कमाओ? ऑब्जेक्टिव्स आने वाला, कौन की करोगे? ABCD C, ए, तेरा फेवरेट अल्फाबेट क्या है? ई तो है नहीं, ABCD। How will you going to get earn money? By clearing exams. How will you clear the exams? Huh? No, by understanding. By understanding. और आप नहीं डाल रहे हो क्लास में,
तो गेसवर्क से आंसर क्यों? बोलो, पहले किसको मिलेगा, बाहर वाले को, घर वाले को? पहले बाहर वाले को मिलना। कंपनीज एक्ट में भी लिखा है, कंपनीज एक्ट में भी लिखा है, सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी है। से फॉर एग्जाम्पल तुमने कुछ काम से भाई, अपने भाई से या बहन से 10,000 रुपया लिया था, और से तुमने 15,000 रुपया लिया, पैसा आया, पहले किसको वापस करो? प्योर ह्यूमन, बाहर वाला ही जाएगा, ज्यादा रिस्क। बिजनेस तेरा है, तेरा बिजनेस में तूने बाहर से पैसा लिया है तो पहले उसको देना, तो थोड़ी खुद को पैसा वापस दे देगा। चीटिंग है या नहीं? पहले बाहर वाले को मिलेगा। तो इसमें से मैंने बाहर वाले को 400 रुपया दे दिया, बस अभी बचा कितना, 600। ये 600 है किसका? क्यों प्रेफरेंस शेयर्स क्यों है? इक्विटी ने क्या प्राप्त किया है? वो ओनर नहीं है क्या? ये किसका है? शेयर होल्डर्स का, ओनर्स का है, मेंबर्स का है। सुनो, अभी ये 600 रुपया वापस करने का है, वापस करने का बचा है इसलिए वापस करने का है। अभी लाइन में वापस कौन पहले खड़ा रहेगा कि भाई ले भाई, पहले प्रेफरेंस शेयर्स को वापस दो 400 रुपया, फिर जो भी बचेगा वो इक्विटी शेयर्स। लेकिन समझो 1,000 रुपया हमने सारा असेट्स बेच दिया और 1,000 रुपये में लायबिलिटीज पे ऑफ कर दिया, बचा नहीं है, तो क्या कौन प्रेफरेंस और क्या इक्विटी? पैसा ही नहीं है मेरे पास। क्या नहीं मैं लाइन में पड़ा खड़ा रहे, खड़ा रहे, मेरे पास पैसा नहीं, जा मैं जा रहा है, डजंट मेक अ सेंस। वैसे ही प्रॉफिट हुआ और डिविडेंड देने का है तो प्रेफरेंस को पहले मिलेगा। कंपनी बंद हो गया, एंड में पैसा बचा है और पैसा रिफंड करने का है, कैपिटल को रिफंड करने का है, तो पहले प्रेफरेंस को मिलेगा। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? They get a preference of repayment of capital at the time of liquidation. They get a preference in repayment of capital at the time of liquidation of the company. They get two preferences. They get a preference to receive dividend at a fixed rate or a fixed amount, and they get a preference for repayment of capital at the time of liquidation of companies. And this both the preferences are over and against equity shareholders. So how is it defined? Preference shares are those shares which have a preferential right over other shares in, point number 1, in receiving dividend at a fixed rate or a fixed amount, or in repayment of capital at the time of liquidation. Understanding this? अरे yes or no? दो टाइप का प्रेफरेंस मिलता है, दोनों ओनर्स है। डोंट ट्राई टू रिमूव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फ्रॉम देयर ओनरशिप, दे आर स्टिल द ओनर। आर यू गेटिंग इट? इक्विटी भी ओनर है, प्रेफरेंस भी ओनर है, बट दोनों का थोड़ा सा राइट्स और ऑब्लिगेशन में फर्क है, लेकिन दोनों ओनर। आई क्लियर? Or no? पक्का? अपार्ट फ्रॉम दैट, एज ही हैड पॉइंटेड आउट इन बिटवीन, वो डेफिनेशन का पार्ट नहीं है बट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। फिर थोड़ा सा वापस बैकवर्ड जाएंगे। मैंने क्या बोला था कि एक जन से 1 करोड़ लेने से अच्छा 1 करोड़ से 1-1 रुपया लो। फिर मैंने 1 करोड़ लोगों से 1-1 रुपया ले लिया। कितने ओनर्स है? 1 करोड़ ओनर। सब लोग आएंगे ना ऑफिस, रोज सब लोग ऑफिस आएंगे, चलो आ भी जाएंगे, बिठाएंगे किधर? और काम होगा कैसे? या 4 दिन काम करते होते तो 40 झगड़े होते हैं। यू थिंक इज पॉसिबल वर्क लाइक दैट? कोई एक रुपया लिया था किसी गांव में, किसी खेरूत से लिया था, फार्मर से लिया था, ही इज इंटरेस्टेड फार्मिंग, ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट व्हाट आई एम डूइंग विद दैट 1 रुपया। बोलेगा मेरे को मेरा रिटर्न्स दे, मेरा डिविडेंड दे, बस है। तू क्या करता है उससे तेरा प्रॉब्लम है। 1 रुपया लेके ना मगजमारी करेगा। So no. So here comes the very special characteristic of a company where the management of the company is different and the ownership is different. What do you mean by this? Let's say you are a sole proprietor. तुमने खुद का बिजनेस चालू किया, मालिक कौन है? Who is the owner? Yourself. Who will manage the company? You. तेरा बिजनेस है. You will have employees, but ultimate decision making power किसके पास है? और मैनेजिंग पावर किसके पास है? खुद के पास। पार्टनरशिप में who is the owner? पार्टनर। मैनेज कौन करेगा? पार्टनर। कंपनी में क्योंकि इतने लोग हैं, 1 करोड़ लोग ओनर है, 1 करोड़ लोग मैनेजर नहीं बन सकते, तो देश से मैनेज अलग लोग करेंगे जिसको हम लोग अपॉइंट करेंगे। 1 करोड़ लोग मिलके कुछ लोगों को अपॉइंट करेंगे कि तुम लोग मिलके मैनेज करो। दिस कुछ इज कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। What are they called? Board of directors. So basically the management is different and the ownership is different. Ownership is still upper hand. Owner is owner है, के नीचे काम करेगा डायरेक्टर्स। Are you getting it?
बट द डायरेक्टर हैव हिज ओन बिग स्पेक्ट्रम ऑफ पावर्स, बहुत पावर्स रहता है उनके पास। ओनर्स आने नहीं वाला हर चीज का डिसीजन मेकिंग के लिए, सारा डिसीजन करेगा कौन, डे टू डे बेसिस पे करेगा कौन, ओनर। सिंपल कॉमन सेंस लो ना, सोसाइटी में रहते हो ना, तो जाते हो तुम लोग रोज ऑफिस में जाते हो, सोसाइटी ऑफिस में, क्या झाड़ू वाला आया कि नहीं आया, आज पानी चढ़ा कि नहीं चढ़ा, तो करते हुए तुम लोगों ने कमिटी को अपॉइंट किया है, दे आर लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड यू आर द मेंबर्स। किसी इंपॉर्टेंट चीज रीडेवलपमेंट का कुछ करना है या कोई मेजर खर्चा करना है तो फिर एजीएम बुलाएंगे, फिर ओनर्स का परमिशन चाहिए। वैसे ही होता है वहां पे भी, मैनेजमेंट इज डिफरेंट, ओनरशिप इज डिफरेंट। आर गेटिंग इट? अभी सोसाइटी में तुम्हारा मीटिंग रीडेवलपमेंट का बात करना है, समझो तुम्हारे नाम पे फ्लैट है तुम लोग, या सम सॉरी पेरेंट्स पापा के नाम पे फ्लैट है, पापा गए मीटिंग में, यस, वहां पे करने का डिसाइड करने का था कि रीडेवलपमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो व्हाट विल हैपन, दे विल टेक अ वोट, देंगे ना, कितने जन फेवर में है कितने जन नहीं है। यस, ये पावर किसके पास होता है, मेंबर्स के पास। सोसाइटी का बात चल रहा है, गिर जाएगा, सुन, ये पावर किसके पास है, सिर्फ सोसाइटी में जिसके नाम पे फ्लैट है, जो मेंबर है सोसाइटी का, उसका उसके पास है। तुम लोग जाके झगड़ सकते हो, डू यू हैव द पावर? तो वोटिंग पावर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर। दो टाइप का पावर्स इंपॉर्टेंट होता है, एक वोटिंग पावर, दूसरा डिविडेंड पावर, जो हम लोगों ने डिस्कस किया। वोटिंग पावर विच इज मच मोर important thing. Now when we come to company, both preference shares and equity shares are the owners. They have the right to take decisions. एक्सपांड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किधर कितना पैसा लगाना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स के पास। लेकिन प्रॉब्लम यह है, एज पर कंपनीज एक्ट, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर गिवन अ प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड एंड एवरीथिंग, दे डोंट गेट वोटिंग राइट। क्यों, मैं मालिक है, बोला मालिक है तो तेरे को है ना रिटर्न्स हम लोग फिक्स करके दे रहे हैं, इक्विटी को रिटर्न्स फिक्स नहीं किया है, कम से कम उसको बिजनेस कंट्रोल में तो रखने दे, वरना उसको कोई इन्वेस्ट क्यों करेगा। ना तुम मुझे बिजनेस कंट्रोल करने को दे रहे हो, ना मुझे तुम लोग डिविडेंड में प्रेफरेंस दे रहे हो, तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, मेरी आई नीड कंट्रोल ऑफ बिजनेस, आई एम गिविंग यू कंट्रोल ऑफ बिजनेस, आई विल नॉट गिव यू अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। सर ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मैं थोड़ा सा घुमा रहा है इसको समझने के लिए खाली। सर बिजनेस चालू किया, तुमने अपना 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, श्योर है क्या तुमको रिटर्न्स मिलेगा? अगर रिटर्न्स मिलेगा वो श्योर है, तो भी कितना मिलेगा श्योर है क्या? तो तू एक्चुअली मालिक है। ये ओनर का कैरेक्टरिस्टिक है, यस और नो? तूने किसी से 1 लाख रुपए का लोन लिया है, झक मार के इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो मालिक है कि लेंडर है, तो वो आके डिसाइड नहीं करेगा तेरे बिजनेस में क्या करना है, वो रिस्क नहीं ले रहा है, उसका रिस्क लिमिटेड है। यस सर, उसको एवरी ईयर 10% 10% 10% जा रहा है, मेरे को एवरी ईयर कुछ नहीं मिलेगा शायद, मेरे से पहले उसको देना पड़ेगा, फिर मेरे लिए कुछ बचा तो, समझ में आ रहा है? हाँ, तो बोलना तो मैं, अब डिसीजन मेकिंग पावर मेरे हाथ में होना। सेम लॉजिक इज अप्लाइड ओवर हियर, दो प्रेफरेंस इज स्टिल अ ओनर, लेकिन लॉजिक सेम लगता है कि तेरे को डिविडेंड दे रहे ना फिक्स रेट पे, हाँ तो तेरे को वोटिंग पावर नहीं देंगे, यू नो, दे डोंट हैव वोटिंग पावर। इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनली हैव अ वोटिंग। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो इक्विटी शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे, जो भी प्रॉफिट कमाएगा उसमें पहला हिस्सा वो लेके जाए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, लेकिन डिसाइड मैं करेगा। Are you understanding this? So preference shareholder does not have a voting right, equity shareholder has a voting right. ये डेफिनेशन का पार्ट नहीं है, ये उनका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, गेटिंग इट? लेकिन थियरी सब बाद में। मूविंग ऑन, आफ्टर डूइंग 2 टाइप्स ऑफ शेयर। अच्छा, ये तो रह गया, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी शेयर, हाउ डू यू पुट इन डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज इक्विटी शेयर? Once again, what is preference share? Preference shares are those shares which have a preferential right over other shares in, number 1, dividend at the rate of fixed amount or a fixed rate, and in repayment of capital at the time of liquidation of the company. बराबर है? How do you define what is equity shares? See, even shareholder is a member. Dividends. कैरेक्टरिस्टिक है, मैंने पहले ही बोला। बोल हाँ, शेयर इश्यू नहीं किया, तेरे को बोनस चाहिए, तो 10 रुपया देने के बाद डिविडेंड चाहिए, अब इसको बोनस चाहिए, बड़ा लालची इंसान है। से और डिफाइन, वेरी गुड, रॉन्ग। इक्विटी शेयर्स आर डिफाइंड एज शेयर्स अदर देन प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, दो ही तो था ना, एक को डिफाइन किया, दूसरा जो नहीं है वो
ये कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन है, सेक्शन 2 में लिखा है इक्विटी शेयर शेयर्स अदर देन प्रेफरेंस। बराबर ना? व्हाट इज इक्विटी शेयर? जो तू बोल रहा था बरोबर था, which does not have a right to receive the dividend, which does not have a right to receive the capital at the time of liquidation before the preference, वो सब ठीक है, पर ऐसा डेफिनेशन अदर देन ए और बी है, ए को डिफाइन किया तो बी इज अदर देन ए ना, खत्म करना, कौन तो रामायण करेगा? मीनिंग इज अंडरस्टूड, यस और नो? चलो मूविंग ऑन, we understood what is share, understood what is face value, what is issue price, we understood what are two types of shares, yes or no? See, preference shares issue करो या equity shares issue करो, issue का procedure remains the same, journal entries remains the same, कुछ टेंशन का बात नहीं है सर। Now we start with the core hardcore accounting. Let's say you want to issue equity shares, let's say you want to issue shares, कौन सा शेयर? कोई भी शेयर, you want to issue shares, का face value है 10 रुपया और issue price कितना है? 10 रुपया। They are called as shares issued at par. यहाँ पे क्या बोला था? फेस वैल्यू का और एक नाम क्या है बेटा? पार वैल्यू है, बराबर है? तो when you are issuing the shares at face value, when issuing the shares at face value, technically it is called as shares issued at par. So no, बाकी का बाद में देखेंगे। Shares are issued at par, 10 रुपए में शेयर इश्यू करना है, बराबर है? अब होगा ये कि प्रोस्पेक्टस छपवा दिया, प्रोस्पेक्टस के साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म क्यों चाहिए? क्या मैं सबसे जबरदस्ती बोलूं कि 10 रुपया दे? मैं खाली ऑप्शन दे सकता हूं कि इंटरेस्टेड हो तो दो 10, ऐसा ना? तो वो मैं कैसे बताएगा? मैं थोड़ी पर्सनली जाने वाला, तो मैं सबके एक एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। अगर तुमको इंटरेस्ट है तो एप्लीकेशन फॉर्म भरो, तुम्हारा नाम, एड्रेस, आधार, पैन कार्ड, बैंक का डिटेल सब भरो एंड यू सेंड अस द एप्लीकेशन। Remember, when you send the application form, that does not mean that you have become the shareholder. You have applied. If I accept, then you might get the shares. If I don't accept, get lost. Contract Act पढ़ा है ना? When you fill the application, it's an offer. There's no acceptance yet. समझ आ रहा है? Application form अगर shares में interest है तो application form भरो, details डालो और दे दो। सुनो? अगर समझो ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म सब लोग भरते हैं और सब लोग कंपनीज को देते हैं, तो लगता है सब लोग इतने करेंगे, कोई टाइम पास क्या करना है, लगा तो ठीक, नहीं लगा तो ठीक, ऐसा नहीं होना। वांट टू रियली सच अ पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस, देयर हैज टू बी सम स्किन इन द गेम। जब तक सामने वाले का पैसा बिजनेस में नहीं लगेगा ना, तब तक उसको एक्चुअली इंटरेस्ट है ऐसा लगेगा नहीं। नहीं, एप्लीकेशन अगर दे रहे हो पैसा 2 साल, तो एज अ एप्लीकेंट मैं क्या बोलेगा? शेयर्स दिया क्या मेरे को? नहीं, मैं तेरे को पैसा देगा तू लेके भाग गया तो कंपनीज एक्ट बैठा है उधर। जो पैसा एप्लीकेशन के साथ आएगा, अगर शेयर्स आप नहीं देते हो तो 30 डेज के अंदर वो पैसा रिफंड करना पड़ता है। आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ द प्रोसेस, यस और नो? अभी तो पैसा देने का भी जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ बैंक अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है और जैसे अगर शेयर्स मिला है तो डेबिट होकर पैसा चला जाएगा कंपनी के पास। अगर शेयर इश्यू नहीं हुआ है तो वो लॉक रिलीज हो जाता है। महीने से लॉक मतलब उतना पैसा आप यूज कर सकते नहीं, आपके बैंक में उतना लॉक हो जाता है, फ्रीज हो जाता है सर। और मिल गया तो डेबिट होकर निकल जाएगा, नहीं मिला तो लॉक निकल जाएगा। सर्विस अभी रोकड़ा जाता भी नहीं है। पहले ऐसा था कि भाई चेक डालो या पैसा दो बैंक में जाके, का जो अकाउंट रहेगा उसमें डिपॉजिट करो एंड सो ऑन। तो पैसा एप्लीकेशन के साथ देना पड़ता है। जब तक एप्लीकेशन में पैसा नहीं आएगा ना, एक्चुअल जेन्युइन इन्वेस्टर है वो पता ही नहीं चलेगा तुमको। हाउ विल यू नो इज अ जेन्युइन वन और नो? ओनली व्हेन इज इंटरेस्टेड ही विल पे सम मनी, देन इट विल से अच्छा ये पैसा दे रहा मतलब इसको कोई सेंस है, इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस और नो? तो एप्लीकेशन अगर आप करते हो, सो एप्लीकेशन बिकम्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ इश्यू। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? और एप्लीकेशन फोकट में नहीं होता है, एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन मनी आना चाहिए। अच्छा, कितना एप्लीकेशन मनी? देयर आर लॉट ऑफ थियरी, लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज, आई एम नॉट गेटिंग इनटू टेक। लेट्स से अपने को 2 रुपया चाहिए, 10 रुपये में से 2 रुपया एप्लीकेशन के साथ दो। अगर 100 शेयर्स चाहिए तो 100 इंटू 2 रुपीज 200 रुपया। 1000 शेयर्स चाहिए तो 1000 इंटू 2 2000 रुपया। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स व्हाट? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बता, 2 रुपया दिया मुझे सर, मुझे एप्लीकेशन मिल गया।
अभी मैं बोलता है कि ठीक है, these are good people, let us issue shares to them. Issue shares यहाँ पे technically is called as the second step known as allotment of shares. What? Allotment of shares. Shares will be allotted to you. Shares will be given to you. Sir, चलो शेयर्स देंगे ना, 10 रुपए में से 2 रुपया तो आ गया है, सुनो शेयर्स मिला ना। अच्छा, अभी जब शेयर्स मिला तभी तुम लोग मालिक बने, एप्लीकेशन के टाइम मालिक नहीं बने थे, अभी मालिक बन गए, बाकी का पैसा पॉकेट में। तो बिजनेस करूं कैसे मैं, तो चाहिए तेरे को रखा ही मालिक इसलिए कि तू पैसा दे, तो बाकी का पैसा दे, बाकी का भी सब नहीं चाहिए, 3 रुपया दे दे अलॉटमेंट के। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 2 रुपया 10 रुपया 3 रुपया 4, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन व्हाट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड टू डू। बोला कि भाई अलॉटमेंट किया, तुमको शेयर्स मिल गया, चलो बाकी का 3 रुपया दो। अभी भी 10 रुपए में से 5 रुपया आया, 5 रुपया बाकी है। ये 5 रुपया एज पर कंपनीज एक्ट कोई भी कंपनी मैक्सिमम 3 इंस्टॉलमेंट में मंगवा सकता है, नोन एज कॉल 1, कॉल 2, फाइनल कॉल बोलो या कॉल 3 बोलो, ठीक है। तब ये 5 रुपया जो बचा हुआ है ना, वो आप मैक्सिमम 3, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 3 इंस्टॉलमेंट में आप मंगवा सकते हैं, उससे ज्यादा आप कर सकते नहीं है। ओवरऑल मैक्सिमम कितना स्टेप्स है इश्यू ऑफ शेयर्स में? फर्स्ट स्टेप एप्लीकेशन में होगा क्या, जनरल पब्लिक एप्लीकेशन भरेगा, पैसा कंपनी को देगा, फिर अलॉटमेंट पे शेयर्स अलॉट किया जाएगा, एंड देन कॉल 1 2 3 जहां पे जो बाकी का अगर कुछ पैसा है तो हम लोग रिसीव करेंगे। अगर समझो एप्लीकेशन में पूरा 10 रुपया ले लिया तो अलॉटमेंट का भी कोई पैसा नहीं मिलेगा और कॉल का तो जरूरत ही नहीं है। इट्स ओके, मैक्सिमम 5 है, मिनिमम कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई कम से कम 5 तो होना चाहिए, इट्स नॉट एटलीस्ट 5, मैक्सिमम मैक्सिमम व्हाट 5। करेंगे तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि सब कॉल रहेगा, हो सकता है कोई 1 कॉल में, कोई 2 कॉल में, कोई 3 कॉल में, कोई अलॉटमेंट के साथ पूरा पैसा दे देगा, कोई एप्लीकेशन के साथ पूरा पैसा दे देगा, डिपेंड्स अपॉन हाउ द इशू इज स्ट्रक्चर्ड। एवरी कंपनी का एवरी इशू में बी डिफरेंट। आर यू गेटिंग इट? Yes or no? So maximum there are how many stages of issue? 5. Application, allotment, call 1, call 2, call 3. चाहे preferential issue करो, चाहे equity issue करो, this step remains the same. Now, हाँ से efficient में कौन, तो डेटर कौन सा करना है? डेटर आई एम टेलिंग यू, उड़ा देगा, 5 मिनट भी लगेगा। मेरे प्रिंटेड नोट्स दिया है मैंने, लिखने की जरूरत नहीं है, पर अगर समझना है तो इतना ड्रिलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। यू वांट मी टू गो इन अ वेरी एग्जाम ओरिएंटेड फैशन, और यू वांट मी टू गो इन अ बिट मोर डिटेल, आई एम ऑब्वियसली आई वोंट गो इन टू मच ऑफ डिटेल लाइक वी गो इन सी एंड स्टफ लाइक, नॉट नीडेड। स्पेशली ये चैप्टर्स में भी इतना का स्टडी मटेरियल देखा है मैंने, अच्छा है, बुरा नहीं है, अच्छा भी नहीं है, बट आई कवर्ड लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, गुड सम्स, वी हैव टेकन ऑल दोस थिंग्स, कैटेगरी ऑफ सम्स। थोड़ा सा ड्रिलिंग करेंगे तो सीखने में मजा आएगा और याद भी रहेगा, वरना तो मैं कर दूँ इसका 2 सम हो चुका होता मेरा, मतलब नहीं, हैवंट पेड मनी फॉर। आज हाँ बोला है, 2 दिन का नाम मत बोलना कि हाँ बोल दी, हाँ बोलो क्या बोल रहे? एनीवन एल्स? तू गेस वर्क कर रहे हैं, पिंकी पिंकी पोंकी खेल रहा है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, मेरी बारात में नहीं आया। हाँ बोला तो ठीक, वरना दूसरे को है प्रपोजल तैयार अपना, बारात में। हाँ पिंकी आंटी, आर्टिफिशियल में कौन सा कैटेगरी? नॉट अ रियल अकाउंट फॉर श्योर, राइट? नॉट अ रियल अकाउंट. Bank account is definitely a personal account. What kind of person? Legal, artificial legal person. Legal कौन बोलेगा? फायदा क्या? ऐसे तो मैं भी एक्स्ट्रा लाइन को प्रपोज करने वाला था। फायदा क्या? हो गया ना खत्म। हाँ तू कुछ नहीं होता है। यार भी स्ट्राइक द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। तो वॉर जोन, पहले में गोली लगना ही चाहिए। 4 गोली इधर मारा लगने वाला, अभी लगने वाला था, तेरे को उड़ा देगा। So it's a legal personal account. Why legal? Because the bank comes into existence because of operation of law.
कंपनी हो गया, खुद कोई लिमिटेड कंपनी हो गया, ट्रस्ट हो गया, बैंक हो गया, पार्टनरशिप हो गया, these all are legal because they come into existence because of operation of law. Whereas debtors, creditors are representative personal account. And what are representative personal accounts will be explained to us by Mr. Dash. What do you mean by representative personal account? सुना है कि नहीं सुना है कभी रिप्रेजेंटेटिव होता है? सुना सुना सा है representative personal account. Representative personal accounts means the accounts which are made and which represent someone else. When you say debtor means उसके अंदर क्या मिस्टर ए ही है क्या? ए बी सी डी वो सब लोग हैं जिनसे पैसा लेने का, तो वो सबका अलग अलग अकाउंट बोलने के बदले एक ही अकाउंट नाम यूज किया जाता है डेटर्स. तो डेटर रिप्रेजेंट्स मेनी अदर इंडिविजुअल्स और मेनी अदर इंस्टीट्यूशंस. वो सब लोग जिनसे पैसा लेने का है. सिमिलरली क्रेडिटर्स मतलब वो सब लोग जिनको पैसा देने का है. सो वन अकाउंट इज रिप्रेजेंटिंग अदर्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दे आर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स. बराबर. तो बैंक इज अ लीगल पर्सनल अकाउंट. बराबर. बैंक अकाउंट डेबिट. क्रेडिट किसको करे? शेयर कैपिटल. जो पैसा आ रहा है वो कैपिटल के नाम से आ रहा है. यस और नो? मैंने 10 रुपए ऐसे लिया ये बोल के ना कि वो कैपिटल है. तो टू व्हाट? वेरी गुड. टू शेयर एप्लीकेशन. डू मरो ग्रेजुएट्स. तूने कैपिटल बोला बेटा? मैं पूछा, मैंने बोला नहीं कैपिटल में जाएगा. मैंने से पूछा क्वेश्चन मार्क. नहीं सर क्वेश्चन मार्क नहीं. अरे क्वेश्चन में बोलेगा थोड़ी. मैं ऐसे थोड़ी है कि ये क्या है क्वेश्चन मार्क. ऐसे थोड़ी होता है. अच्छा चल मैं बोला चल. तो एग्री क्यों किया? सर तू राइट है. कोई कुछ क्यों बोलेगा? तो राइट है वो बोलना. घुमाने का ट्राई करेगा तो घूमना मत. कि मेरे को ये टेस्ट करने का रहेगा कि तू गेस कर रहा है जैसे उसने मारा था गेस, कि तू एक्चुअली रियल थॉट प्रोसेस से आंसर ला रहा है जैसे इंकी पिंकी पॉन्की कर रहा है. मैं तो ड्रिल करेगा मार रहा था, तुक्का ही लगा रहा था. रिप्रेजेंट नहीं. हाँ तो लीगल होगा. नहीं हाँ तो रियल हो. सब बोलता था वो. 2-3 रॉन्ग बोलता था. एंड में बोलता था नॉमिनल भी है बोल देता था. हाँ होगा थोड़ा तकलीफ होगा. मेरा टीचिंग का अलग है. तकलीफ हो रहा है तब मेरे को बोल दो. आई थ्रो देम आउट. व्हाई शेयर एप्लीकेशन? व्हाई नॉट शेयर कैपिटल? अभी जो पैसा मिला क्या वो तुम्हारा पैसा है? सॉरी तुम्हारा मतलब कंपनी का पैसा है? नहीं है. शेयर्स इशू किया क्या? शेयर्स अलॉट किया क्या? तो किस हिसाब से तुम लोग उसको अपना कैपिटल बोल रहे हो? अलग बैंक अकाउंट बना है ना. इतना ही तुमको लगता है तुम्हारा पैसा है तो डालो फिर तुम्हारे बैंक अकाउंट में. अलाउड नहीं है क्योंकि ये स्टेज पे वो तुम्हारा पैसा नहीं है. इससे अलग रखा है. बैंक अकाउंट डेबिट वो अलग बैंक अकाउंट में जाएगा. एंड टू शेयर एप्लीकेशन. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? नॉट टू शेयर कैपिटल. अब तक शेयर्स अलॉट हुआ नहीं है. शेयर एप्लीकेशन टाइप का अकाउंट है. आप पर करना. नो रैंडम शॉट. दोनों आंसर रेज है. Understood my question? दिस व्हाट्स द नेम? हाँ आयुष. कभी भी आंसर करोगे किसको भी पहले सोचने का. क्वेश्चन ये है ये इसका रीजन नंबर 1 रीजन 3 इसलिए ये आंसर है. उल्टा नहीं कर सकते. ये रीजन आंसर देने के बाद सोचने का नहीं. थिंक एंड आंसर. डोंट आंसर एंड थिंक. जो तुम लोग करते हो. तुम लोग मतलब स्टूडेंट बोला आयुष जैसे तो करना तो आंसर नहीं. अंकल नेम वर्क मत कर. I am 99% good in accounts. I am 110% good in reading faces. पूछ रहा है ऊपर से. देखिए क्वेश्चन मार्क नहीं बोला था इसने. पैसे आ रहे हैं. हाँ पैसा आ रहा है बरोबर. ये भी सही है. तो डिफाइन इनकम. जबरदस्त. तो क्रेडिट सेल तो होता ही नहीं रहेगा. नहीं पैसे तो नहीं आए तो आंसर दे. अभी पैसा आराम बैठेगा. साहिल हाँ हो गया. अरे क्या सपोज आंसर द क्वेश्चन. व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट अकाउंट? ट्राई. यू टू ट्राई. 10 बार रॉन्ग जाओगे. 11वीं बार रॉन्ग नहीं जाओगे. ट्राई तो करो. ट्राई नहीं करोगे तो क्या सीखने मिलेगा? फिर तो ऐसा होगा मैं बोल रहा हूँ तुम लोग सुन रहे हो मजा आ रहा है. मजा जो सर में जो किया 4 गालियां दी मजा ही चले गए. क्या क्या स्टैंड अप थोड़ी है इधर. आंटी से व्हाट काइंड ऑफ पर्सन? व्हाई? Because it represents all applications. Large number of
It represents applicants. It represents all those people who have given the application. The representative person. तो पहले मैंने समझा दिया था तुमको कि क्या होता है. मैं सोचा था तुम अप्लाई करोगे, नहीं कैसे करेंगे. पैसा आ रहा है तो इनकम ही होगा. जब डेटर पैसा देता है, डेटर से जब पैसा आता है क्या एंट्री पास करता है? डेबिट किसको डेबिट करेगा? डेबिट करेगा पैसा, कैश डेबिट करेगा. तो कैश बैंक टू डेटर्स इनकम हो गया तेरा, है ना, पैसा है. तेरे को हेल्प करना पड़ा है. जिसको हेल्प करेगा भगवान तेरे को हेल्प नहीं करेगा फिर मेरे सामने. हाँ, तो कमिंग बैक, इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. रिमेंबर दैट. यस सर. Second entry is what is the second entry? Understand that when I ask a question, I am laying a trap for you. Then you come happily. Oh. हाँ चलो, ओ बाजू वाले भाई सब बताइए. सही बेटा, सेकेंड एंट्री क्या कैपिटल में? दिस इज दी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मैं तुमको चैलेंज करता है अभी जो हम लोग नेक्स्ट 10 मिनट में डिस्कस करेंगे ना, को जाके पूछना जो अपने क्लास का नहीं है, तुमको मैंने पढ़ा है, तो जाके पूछना, गोबर ही करेगा. गारंटी लिख के दे सकता है. तेरे हिसाब से बोल, प्रेशर में आके मत. एंट्री क्या बोला? बराबर है क्या? कैपिटल में बोल, ग्रेजुएशन हो ऐसे ही पॉजिटिव पर्सन है. सुनना सब लोग, ऐसा नहीं कि वो जवाब दे रहा है तो हम लोग नहीं सुनेंगे. सुनो, उसके आंसर में क्या मिस्टेक है वो समझ में आएगा, तो वो मिस्टेक तुम लोग नहीं करोगे. लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक बिफोर यू डू योर ओन. तुम्हारा फीलिंग अलग रहता है कि सर मैंने पैसे दिए, मैं अलग से मिस्टेक. अब मेरा सवाल वो है, क्यों कोई सवाल है, फाइनल तू सवाल समझा किस हिसाब से किया? शेयर्स अलॉट हो गया क्या? तो कैपिटल में क्यों डाल दिया जब शेयर्स अलॉट ही नहीं हुआ है? Understood my question? Graduates, two people are understand due course of time. Graduates, जब आंसर देगा तो तब समझ में आ जाएगा. You might not get the direct hint of it. Later on you will understand. यही सवाल उसको भी शेयर्स अलॉट किया क्या? लोग ने पहले वहां पे एप्लीकेशन अकाउंट इसलिए क्रिएट किया ये बोल के कि जो पैसा आया वो मेरा पैसा नहीं है, क्योंकि अब तक शेयर्स अलॉट हुआ नहीं है, वो बोल के उसको एप्लीकेशन में रखा था. अभी उसको उठा के कैपिटल में डाल दिया. अलॉट तो अभी भी नहीं हुआ है. तो कैरम खेल रहे तो ड्यू हो गया. कौन सा एप्लीकेशन में कोई ड्यू नहीं होता है बेटा. एप्लीकेशन में सीधा पैसा मिलता है, ड्यू होता ही नहीं है कुछ. ड्यू तो तब होएगा ना जब टाइम आएगा मेरे को लेने का है. कुछ एग्रीमेंट का है? अभी तो खाली ऐसी पैसा लेके बैठा है मैं. देयर इज नो ड्यू, देयर इज नथिंग लाइक ड्यू. नरेशंस याद कर, क्योंकि तुम लोग नरेशंस के थ्रू सबको याद रखते हो. वहां पर नरेशन क्या लिखते हो? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. ड्यू लिखते हो क्या? तो अलॉटमेंट में लिखते हो तुम लोग, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. हो गया, ये तुम्हारा नरेशन है. कटा हुआ क्या? इसमें मैं बत्ती गुल कर रहा बैठ के मजा ले रहा है. सबसे तेरा पैसा है क्या? तो क्यों डाला कैपिटल में? तो रिसीव किया था एप्लीकेशन में, रहने देना. एप्लीकेशन में रहने दे, अलॉटमेंट के बाद डालियो. किसको किसको देखा था? अरे शेयर होल्डर बना ही नहीं अब तक. शेयर होल्डर ही तो बनाने के बैठे हम लोग, अब तक कोई शेयर होल्डर ही नहीं है. So are you saying at this stage the allotment is done? Are you saying this is allotment entry? Then you are wrong. This is the allotment entry. You have said तो almost नजदीक पहुंच चुका था. Allotment entry. That is allotment. What else is allotment? What do you mean by allotment? Are you saying physical delivery of shares is allotment, or decision making itself is an allotment? Good enough. Goddamn allotment. Common sense. Some common sense है. You people think it's a great science. Bloody, it's common sense. That's why it's difficult. हम लोग ने जब पहला एंट्री पास किया, हम लोग ने क्लियरली बोला कि ये अपना पैसा नहीं है, इसलिए कैपिटल में जा सकता नहीं है. क्लियर स्टेटमेंट था. सब लोग हाँ मस्त मस्त. तो जब सेकेंड एंट्री में कैपिटल में ठोक दिया तो मतलब अलॉटमेंट हो गया ना. तो सोचने से क्या,
पहला रीजन कैपिटल में इसलिए नहीं डाला, पहला एंट्री में कैपिटल इसलिए नहीं डाला क्योंकि अलॉटमेंट नहीं हुआ था, दूसरे एंट्री में कैपिटल में डाल दिया, मतलब अलॉटमेंट हो गया ना, और क्या, व्हाई यू नीड टू हैव एनी बिग साइंटिफिक ब्रेन फॉर दैट। लेकिन सर अलॉटमेंट स्टेज नहीं लिखा। हाँ, अभी दो एंट्री के बीच में एक मीटिंग होता है का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, बहुत सारा ऑफिशियल्स होता है, ये लोग डिसाइड करते हैं किसको शेयर्स देना है किसको नहीं देना है। मतलब क्या, तो लोगों ने अप्लाई किया था, मेरे को लगता है कि ये जो शेयर होल्डर्स है ना, दे आर माई कंपिटिटर्स रिप्रेजेंटेटिव। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंपिटिटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा नो, मैं इनको शेयर्स नहीं देगा, ये मेरा मर्जी है। ऐसे मैंने पहले बोला था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद करो, तुम लोग जो अप्लाई करते हो वो खाली ऑफर है, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है, मैं कोई ऑब्लिगेशन में नहीं है, मेरे पे कोई कंपल्शन नहीं है कि तूने अप्लाई किया तो मैं शेयर्स देगा। मैं अप्लाई किया, इट्स एन ऑफर, इफ आई एक्सेप्ट इट देन फाइन, टिल द टाइम कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो भी आया बीच में, अरे अंडरस्टैंडिंग दिस, अप्लाई किया था खाली, यस सर मुझे लगता है इनको नहीं देना चाहिए, नहीं दिया। हो सकता है इसका डिटेल्स बरोबर नहीं है, आधार बरोबर नहीं डाला, पैन बरोबर नहीं डाला, बैंक डिटेल्स नहीं, किसी भी रीजन से हो सकता है मैं इसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दूं, हो सकता है ना। अरे करोड़ एप्लीकेशन आता है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ रहेगा, कुछ मिस्टेक्स रहेगा, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स रहेगा, तो किसी रीजन से मैंने इन लोग को शेयर इशू किया, तो ये डिसाइड कौन करेगा, कब करेगा, ये दोनों के बीच में एक मीटिंग होगा, पहले वो डिसाइड करेगा किसको शेयर देने का, किसको शेयर नहीं देने का। ये जो डिसीजन लिया ना, यही अलॉटमेंट हुआ, ये अलॉटमेंट हो गया, और जैसे अलॉटमेंट हुआ अब मैं बोल सकता है कि इनका पैसा रिफंड करना पड़ेगा, और इनका जो पैसा है ना वो अब मेरा कैपिटल है, इसलिए उसको उठा के डाल दिया यहां। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नो? बरोबर है, अभी इनका पैसा रिफंड करने का और तुम्हारा पैसा कैपिटल में जाना चाहिए, तो मैं यहां पे एंट्री क्या पास करेगा, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू गेटिंग दिस। ये अब तक कंप्लीट ट्रुथ नहीं है, ये पूरा तरह सही नहीं है, वो धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम समझेगा, और लेयर्स आएगा, पहले ये फर्स्ट लेयर है खाली। अरे गेटिंग इट, एनीवन हैज डाउट्स इन दिस, बोल रहा था क्या? तो दिस इज द एंट्री फॉर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट डज नॉट मीन जो हम लोग ने नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ पे लिखा था कि ये अलॉटमेंट स्टेज होता है, ये अलग होता है। एक्चुअल अलॉटमेंट यहाँ पे हो गया, जब तक अलॉटमेंट नहीं होता तब तक पब्लिक का पैसा तुम अपने कैपिटल में डाल सकते हैं, जब ये एंट्री पास करेगा ना तब मैं वो स्पेशल बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के अपने बैंक अकाउंट में डाल सकता है, और जिसको रिफंड करना है वो वहीं से रिफंड हो जाएगा। आर गेटिंग इट? यस और नो? द एंट्री फॉर अलॉटमेंट, टेलिंग यू, गो एंड आस्क एनी ग्रेजुएट, गो एंड आस्क एनी स्टूडेंट, अलॉटमेंट तो कैसे हो रहे। देन कम्स द नेक्स्ट स्टेज, अलॉटमेंट। ये क्या होता है? बोर्ड में डिसाइड किया था ना, मीटिंग में डिसाइड किया था ना, तुमको मालूम है क्या ये बात? एज अ शेयर होल्डर, एज अ एप्लीकेंट, तुमको मालूम है क्या कि तुमको शेयर्स मिला है कि नहीं मिला है? तो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग में बैठा था, मेरे को मालूम है, मैंने अपने बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री पास कर लिया, मैंने पैसा निकाल के डाल दिया, तेरे को थोड़ी मालूम है, तेरे को इंटीमेट तो करना पड़ेगा। अभी सब ऑनलाइन हो गया है, तो एक एक क्लिक बटन करो, फटाफट सब हो जाता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले फिजिकल शेयर्स हुआ करते थे, यस सर, तो सबके घर पे लेटर आता था कि यू हैव बीन अलॉटेड शेयर्स। ये इंटीमेशन है भाई तेरे को मिला है, बाकी का पैसा ला, इंटीमेट भी किया और बाकी का पैसा भी ले लिया, तो इट्स इंटीमेशन स्टेज। अंडरस्टैंडिंग? अलॉटमेंट तो ये हो गया। एम आई क्लियर इन व्हाट आई एम सेइंग? यस सर, उसको इंटीमेट किया और पैसा भी मांग रहा है, तो इंटीमेट किया उसका कोई एंट्री नहीं होता है, शेयर्स दिया उसका कोई एंट्री होने वाला नहीं है, लेकिन पैसा मंगवाया भी है ना साथ साथ में। तो बोला था ना 3 रुपया दे, फिर तो मालिक बन गया, 3 रुपया दे, अभी ये पैसा जो मंगवाया है उसका एंट्री अलॉटमेंट, ये अलॉटमेंट का पैसा मंगवाने का एंट्री। डिफरेंस इन बोथ आ रहा है? 10th के बाद सब अलग अलग कॉलेज में जाके एप्लीकेशन दिया था, फॉर्म भरा था ना, जब फॉर्म भरा तभी एडमिशन मिल गया क्या? एडमिशन कब मिला? लिस्ट लगा था, लिस्ट लगा तभी एडमिशन मिला कि फीस भरा तब एडमिशन? मेरी बारात में आया, एडमिशन तब मिला जब लिस्ट में नाम आ चुका है। फीस नहीं भरेगा तो वो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन तो मिल तो गया ना, तो आगे का पैसा नहीं देगा तो शेयर्स कैंसिल कर देंगे, लेकिन मिल तो गया ना तेरे को, तो नो। हाँ, तो पैसा मंगवाने डज नॉट मीन कि तेरे को एडमिशन अभी मिला है, एडमिशन मिल चुका है, अभी पैसा मंगवा रहा है। अंडरस्टैंड द प्रोसेस?
अभी अलॉटमेंट का पैसा मंगवाने का, पैसा मंगवाने का एंट्री क्या पास करेंगे, किससे पैसा मंगवाने का, अभी शेयर होल्डर से। ये जो पैसा आया था किससे आया था, जनरल पब्लिक से आया था। अभी जो पैसा मंगवा रहे किससे मंगवा रहे, शेयर होल्डर से। अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन द लैंग्वेज ना। शेयर होल्डर से पैसा मंगवाया तो क्या एंट्री पास करेंगे, अलॉटमेंट क्यों, शेयर होल्डर क्यों नहीं, लीगल। अच्छा खासा राइट आंसर बोल, देखिए इसकी पढ़ के जुगाड़ वाले आंसर चालू कर दिए। अभी तुम लोग ने शेयर होल्डर से पैसा मंगवाया, कौन सा पैसा मंगवाया, अलॉटमेंट का ना, हाँ, तो उसको शेयर अलॉटमेंट बोला जाता है। इतना ही बोलने का था, फोकट का डरते हो तुम लोग मेरे से, अच्छी बात है, एंजॉय। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यस सर। अभी शेयर अलॉटमेंट का नेचर क्या है, रियल पर्सन नॉमिनल, बोलो चेक्स नेम, हाँ सब बोल देता, नेचुरल लीगल आर्टिफिशियल सब पर्सनल है, सब कटनी डाल बिल में। एक चीज बोल कोई, मम्मी पूछ ये तीनों में से कौन सी लड़की पसंद है, हाँ एक से भी मत कर। क्यों, पढ़ाई के बारे में सोच। रिप्रेजेंटेटिव, व्हेन यू से शेयर अलॉटमेंट, क्या वो किसी एक को रिप्रेजेंट कर रहा है या सारे शेयर होल्डर्स को, बोलने तो मेरे को पूरा सवाल तो सुनो फ्रेंड लोग। शेयर अलॉटमेंट जब बोला जाता है, डज इट रिप्रेजेंट वन शेयर होल्डर और इट रिप्रेजेंट्स ऑल द शेयर होल्डर्स जिनसे आपने अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया है, तो रिप्रेजेंटेटिव हुआ ना। वन अकाउंट इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द शेयर होल्डर्स जिनसे अलॉटमेंट का पैसा लेने का है, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। काहे लीगल घुसेड़ रहे बे, सर आई वाज प्लेइंग सेफ। आप रॉन्ग कैसे बोलोगे, मैंने तो सब बोल दिया। हाँ तो बेटा मैं ऐसे लोगों को रॉन्ग बोलता, मैं झंड बोल के निकाल देता हूँ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इनसे पैसा मिलने वाला है, और जो भी पैसा आएगा, इज इट माई कैपिटल नाउ, कैपिटल। अभी झंड थोड़ी यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल लिखेगा मैं, इज इट माई कैपिटल, No. एब्सोल्युटली यस। तुम लोग मेरे एक्सप्रेशन से हिसाब से आंसर चेंज किया है, डोंकीज। शेयर कैपिटल, और क्या, अभी तो शेयर होल्डर से पैसा मंगवा रहा, मैंने बोला लैंग्वेज को देखो। पहला जनरल पब्लिक से पैसा आया था, वो मेरा कैपिटल नहीं हो सकता है, जनरल पब्लिक है। अभी शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर से जो पैसा आएगा वो शेयर कैपिटल होगा ना, तो क्या आंसर चाहिए सर। ये तो आंटी एप्लीकेशन में चलेगी। वो एंट्री कब है, कैसे आता है, क्यों आता है, वो तो सोचो। किधर का चीज किधर भी फिट नहीं होता ना बेटा। बल्ब का सॉकेट रहेगा तो ट्यूबलाइट फिट नहीं होने वाला है उसमें, बराबर ना। You have to understand the whole context and then say. Without understanding the context, if you say, it will backfire like anything. Not only in class, in life as well as in interviews and everywhere. Never say without understanding the context. बराबर है, तो मैं तो ऐसे एक्सप्रेस शेयर कैपिटल, जो पैसा आएगा किधर से आएगा, शेयर होल्डर से आएगा, तो शेयर कैपिटल है। सेकेंड एंट्री, ये तो पहले हम लोग ने क्या किया, पैसा डिमांड किया, मंगवाया है, मिला थोड़ी है। बोलने तो दे बैंक अकाउंट, एकदम श्योर, एकदम कॉन्फिडेंट। रॉन्ग है, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्या क्या हो गया तेरे को, तो क्यों कैपिटल बोला, जब मैं बोल रहा अलॉटमेंट है, सब लोग अलॉटमेंट बोला, नहीं नहीं सर मैं अलग करेगा। I don't understand. Relax. Share allotment. Donkey. Give me the entry for credit. सेल की एंट्री या पास करेगा। हाँ तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे बेटा, क्रेडिट सेल की एंट्री। कौन बताएगा क्रेडिट सेल की एंट्री, ट्राई तो कर। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अभी जब ये डेटर पैसा देगा तो क्या एंट्री पास करेगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। सेम एंट्री, वो गुड्स बेच के पैसा कमाते हो तो डेटर्स और सेल्स जैसा टर्म्स आता है, शेयर्स इशू कर रहे हो इसलिए शेयर अलॉटमेंट शेयर कैपिटल जैसा टर्म्स आता है। लॉजिक तो वही है, डेटर्स मतलब पैसा लेने का है, शेयर अलॉटमेंट मतलब पैसा लेने का है।
वहां पे गुड्स बेचा था इसलिए सेल्स है, यहाँ पे शेयर्स इशू किया इसलिए शेयर कैपिटल है। लॉजिक अकाउंटिंग का भी सेम है, नया नहीं है, कुछ पोप नहीं है, कुछ ग्रेट नहीं है। इफ यू अंडरस्टैंड अकाउंट्स, अकाउंट्स इतना ही है। इनके 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स है रियल पर्सन नॉमिनल का, चौथा है क्या? तो डिफिकल्ट क्या है? 3 तो प्रिंसिपल है। 11 से लेके हाईएस्ट लेवल ऑफ अकाउंटिंग दैट इज सीए फाइनल तक, बराबर है, जो अकाउंटिंग के लिए सीए माना जाएगा, सीएमए फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग, यस सर, उधर तक खाली 3 ही प्रिंसिपल यूज होते हैं। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन भी डिफिकल्ट नहीं है, तुम लोग करते नहीं हो एप्लीकेशन, प्रॉब्लम उधर है। अपने को रेडीमेड आंसर चाहिए, रेडीमेड सब फटाफट आंसर देने का, कॉपी करने का, घर पे जाने का, फिर जब सवाल पूछो तब गोबर करने का। ऐसा नहीं होता बेटा। अंडरस्टैंडिंग दिस इज सेम। पैसा लेने का है तो वो डेटर ही है, उसे पैसा लेने का है तो शेयर अलॉटमेंट इज लाइक अ डेटर, कांट राइट डेटर बट इट इज बेसिकली डेटर। उनसे पैसा लेने का है, जिससे भी पैसा लेने का है वो तुम्हारा डेटर ही होगा, नाम चेंज होता रहता है अलग अलग जगह पे, है तो वो डेटर ही। यस सर, देने का रहेगा तो क्रेडिटर है, खाली नाम चेंज होता रहता है, सिंपल, कुछ स्कोप नहीं है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो पैसा ड्यू होएगा या डिमांड किया तो क्या एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, पैसा मिल जाएगा, दिस इज अमाउंट रिसीव्ड, क्या एंट्री आएगा, हैंड्स ऑफ यूजिंग बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट, तो गेटिंग इट। चलो अभी इसके बाद बाकी का पैसा कॉल से मंगवाने का है। कॉल 1 हो सकता है, कॉल 2 हो सकता है, कॉल 3 हो सकता है। कॉल 1 हो, 2 हो, 3 हो, सबका एंट्री रिमेन्स द सेम, खाली नंबर चेंज होता है, कॉल 1 फिर कॉल 2 फिर कॉल 3, एंट्रीज रिमेन द सेम। चलो अभी कॉल का पैसा मंगवाने का, कौन एंट्री देगा? हाथ ऊपर कर, और कोई एंट्री हाथ ऊपर नहीं करता तो मैं खुद ही पूछ लेता हूँ सामने से, वरना मेरा इज्जत का। वेरी गुड राहुल से जाग रहे, सो रहे पक्का? क्या आगे बुलाऊं तेरे को? क्वेश्चन क्या है? एलर्जी है क्या तुमको ये रो से? तो ट्राई तो कर, ट्राई नहीं करेगा जिंदगी में तो हाँ कैसे बोलेगी? हाँ, शेयर कैपिटल टू बैंक, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? डेबिट करेगा क्रेडिट करेगा? पहले सोचना, मेरे को बोलने के पहले सोचना, टाइम दे रहा हूं ना मैं तेरे को। शेयर कॉल का नेचर क्या है? अच्छा इंसान है बुरा इंसान है, मतलब क्या मतलब? कब से तो नेचर डिस्कस कर रहे हैं, वही रियल पर्सन नॉमिनल कौन सा? नहीं कौन सा? नहीं कौन सा? टुवर्ड्स द एंट्री, हाँ ओके, शेयर कॉल 1 2 या 3 अकाउंट सबका एक ही एंट्री पास करे, सबका अलग अलग। शेयर कॉल 1, शेयर कॉल 2, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, थर्ड कॉल, वो नाम का वेरिएशन है, नेचर अकाउंटिंग एंट्री कुछ चेंज होता नहीं है। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कॉल इज व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, व्हाई? इट रिप्रेजेंट्स द गॉडडैम शेयर होल्डर जिनसे कॉल का पैसा मंगवाया। शेयर अलॉटमेंट वाज गॉडडैम पर्सनल अकाउंट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स दो शेयर होल्डर जिनसे अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया। Share application represents representative personal account because it represents all those general public who have applied for the shares. वही है सब। Share capital is what kind of? Okay, very good. Share capital is what kind of account? What kind of person? Represents what? Very good. So share capital itself is a representative personal account. जैसे partners capital was representative personal account. Share capital is a representative personal account. So no. Yes. Moral of the story, सब पर्सनल अकाउंट ही भरा पड़ेगा, जानना जरूरी है। आगे जब डिफिकल्ट समझ आएगा ना, और कहीं बुरे सिचुएशन में फंसोगे, एंट्री बनाने का रहेगा ना, तो ये बेसिक फंडामेंटल्स काम आता है। ये तो पर्सनल है, इससे लेने का है तो ये डेटर है, इसको देने का है तो ये क्रेडिटर है। जब डिफिकल्ट सिचुएशन आता है ना, तब ये बेसिक फंडामेंटल्स काम आता है। तब तक ये तुमको डे टू डे बेसिस पे इतना चलो चल रहा है, पूरे फंसोगे तब इसको यहां से निकालने के लिए बेसिक फंडामेंटल्स काम। अभी इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा, लेट द डिफिकल्ट सम्स कम, देन यू विल अंडरस्टैंड। गेटिंग इट? याद रखिए तब तक। ये किसका पैसा था या एंट्री था? पैसा डिमांड किया, पैसा मिलेगा। गेटिंग इट? सॉरी, कॉल 1 हो, 2 हो या फिर 3। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, अलॉटमेंट और कॉल का एंट्री तो सेम है, खाली नाम चेंज हो रहा है।
अलॉटमेंट के बदले कॉल आ रहा है, बाकी सब सेम ही है। तो मोटा मोटी इफ यू सी देयर आर ओनली 2 सेट्स ऑफ एंट्री, एक एप्लीकेशन का एंट्री, दूसरा ये वाला एंट्री, दोनों मिला के बस है। अरे अंडरस्टैंडिंग दिस? यस सर नो? चलो फिर थोड़ा सा इसमें और वेरिएशन। तो तुमने कॉल या सॉरी अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया, यस क्यों नहीं है, निकलता रहेगा निकल। सो लेट्स से तुम लोग सब लोग शेयर होल्डर्स हो, मैंने शेयर अलॉट कर दिया, अभी मैंने तुमसे अलॉटमेंट का पैसा मांगा कि 3-3 रुपया दो, सर नरेश बोलता है बस 3 रुपया नहीं है, मैंने खा लिया, नहीं है इसका पैसा, इसने नहीं दिया, नहीं दिया तो क्या करूं मैं, नहीं दिया क्या करने का, क्योंकि इफ यू अंडरस्टैंड जब मैंने पैसा डिमांड किया, मैंने सबसे पैसा डिमांड किया, मैंने क्या एंट्री पास किया, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मैंने ये उम्मीद में कैपिटल में क्रेडिट किया, मैंने ये उम्मीद में शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया कि तुम सबसे पैसा आएगा क्योंकि ये तुम्हारा लायबिलिटी है पैसा देने का, यू आर द ओनर, यू आर द शेयर होल्डर, योर लायबिलिटी टू पे द मनी, यस सर। तो उस उम्मीद में मैंने एंट्री पास कर दिया, तो में से ये आदमी ने पैसा दिया नहीं, नाउ व्हाट एंट्री विल आई पास, बाकी लोगों ने पैसा दिया तो मुझे 2 एंट्री पास करना पड़ेगा, एक जिन लोगों ने पैसा दिया और एक जिसने पैसा नहीं दिया। तो व्हाट एंट्री आई एम गोइंग टू पास, आई विल पास द एंट्री एज बैंक अकाउंट डेबिट, कौन सा अमाउंट, बराबर है, देन आई विल क्रिएट अ न्यू अकाउंट नोन एज कॉल्स इन अरियर्स डेबिट, इसमें कौन सा अमाउंट रहेगा, अमाउंट नॉट ड्यू, तो उधर ही हो गया था ना बे, नॉट रिसीव्ड, देन टू शेयर अलॉटमेंट कैपिटल, एक बार तो क्रेडिट किया, कितनी बार, कौन था ये कैपिटल वाला, कौन था, ओह चिन्मय अंकल, अरे अंडरस्टैंडिंग दिस, तो ये एंट्री और ये एंट्री में खाली एक नया अकाउंट आ गया, कॉल्स इन अरियर्स, अच्छा व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट, याद रखो नहीं दिया, कौन बताएगा, बैक कौन सा पास, is again a representative personal account, it represents those shareholders who haven't paid the money, it represents whom, the shareholders who have not paid the money, again representative personal account. Look at the image, सब personal क्या रहा है, don't get driven by that, be very careful when you're doing the classification, कभी कोई झटका देखिए नॉमिनल या रियल घुस जाएगा ना, पता नहीं चलेगा तुमको, ये भी पर्सनल, ये भी पर्सनल लेगा फिर इसको अरे करेंगे। सो कॉल्स इन अरियर्स इज एन अकाउंट दैट इज क्रिएटेड फॉर अमाउंट नॉट, हो सकता है कॉल का भी पैसा ना दे, कॉल का पैसा मंगवाया था ना भाई, जरूरी थोड़ी सब लोग देंगे, ना दे तो कॉल के लिए क्या एंट्री पास करोगे, कॉल का पहला एंट्री क्या आएगा, शेयर कॉल 1 2 3 अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बराबर है। सेकंड जो लोग पैसा दे देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट रिसीव्ड, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट अमाउंट नॉट रिसीव्ड, टू शेयर कॉल 1 2 3, to understand call gets closed, allotment gets closed, डिमांड किया आ गया या नहीं आया, इधर वेज पर अलॉटमेंट क्लोज हो गया, आया तो बैंक में गया, नहीं आया तो सीआई में चला गया, लेकिन अलॉटमेंट बंद करना पड़ेगा, कॉल भी बंद करना पड़ेगा। यहां पे भी एप्लीकेशन में भी देखोगे तो एप्लीकेशन क्रिएट हुआ, एप्लीकेशन बंद हो गया, क्योंकि जो पैसा आया था या तो वो रिफंड कर दिया या तो अपना कैपिटल बन गया, लेकिन एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, ये सब टेम्पररी अकाउंट्स है। अरे अंडरस्टैंडिंग दिस, एवरी गॉडडैम पर्सनल अकाउंट इज ऑलवेज टेम्पररी, जब तक पैसा मिलेगा नहीं या जब तक पैसा देंगे नहीं तब तक पर्सनल खड़ा रहता है, बाद में खत्म हो जाता है। अगर इससे मैंने इसको मैंने गुड्स बेचा है और इसने मुझे रोकड़ा अभी का भी दे दिया, तो क्या मैं उसका नाम याद रखेगा क्या, चलो हो गया ना, रोकड़ा मिल गया, ट्रांजैक्शन खत्म, पैसा नहीं दिया तो याद रखना पड़ेगा।
एक बार उसने वो पैसा दे दिया, बाद में वापस तू कौन मैं कौन। एवरी गॉड नेम पर्सनल अकाउंट इज क्रिएटेड फॉर ए टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम, जब तक पैसा मिलेगा नहीं या जब तक पैसा देगा खत्म। कैपिटल भी एक बार रीपे कर दिया तो खत्म हो जाता है, खाली इतना है कि कैपिटल बहुत ज्यादा टाइम के लिए रहता है क्योंकि वो कैपिटल है। यस सर, बट फिर भी तक पैसा आया नहीं गया नहीं तब तक जिंदा है, उसके बाद वो मर जाएगा। एवरी पर्सनल अकाउंट इज मेड बेसिकली फॉर दैट। आर यू गेटिंग इट? यस और नो? श्योर। देन वी गो टू द सेकंड टाइप ऑफ इशू। हम लोग ने पहला देखा था शेयर्स आर इशूड एट पार, 10 रुपया फेस वैल्यू था और हम लोग ने इशू कितने पे किया था? 10 रुपये। अभी हम लोग इशू करेंगे 15 रुपए में। तो व्हाट्स माय इशू प्राइस? 15। व्हाट्स माय फेस वैल्यू? 10। तो मैं फेस वैल्यू से ऊपर 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है, जो भी हो, मेरा रेपुटेशन है, मैं बहुत अच्छा कंपनी है, तुम पागल हो, तुम लोग ज्यादा देने के लिए तैयार हो, जो भी है, मैं 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है। ये जो 5 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है, सुनो, एक्स्ट्रा जो 5 रुपया है, वैल्यू ओवर एंड अबव फेस वैल्यू, वैल्यू अबव फेस वैल्यू 5 रुपया क्या है? क्या है का मतलब इसका नेचर क्या है? वियर्ड क्वेश्चन है सर, जरूरी है, अकाउंटिंग समझ नहीं आता तो क्या है? लोग को ग्रेजुएट्स वालों को लगता है उनको पता, आंसर्स आर रेडी हो, माय गन्स आर रेडी हो गए। हाँ देव, 5 रुपया क्या है? मैंने तेरे को बताया। प्रीमियम मतलब क्या है? प्रीमियम इज अ डिफरेंट नेम दैट यू आर गिविंग इट। हाउ इज इट अ नेचर? हाउ इज इट अ नेचर? ये गाड़ी है और ये प्रीमियम गाड़ी है, तो प्रीमियम क्या है ना, ऐसा क्या अलग है इसमें कि बोल रहा है? तो मैं तेरे को पूछ रहा है क्या ये कि तू उसको है क्या, ये नाम देने को नहीं बोला तेरे को, तो नेचर क्या बता। अगर इनकम है तो रिजर्व क्यों क्रिएट किया? तो मालूम था, बोला मैं रेडी है गन्स के साथ, फिर भी ना मैं गोली खाऊंगा। यहाँ पे इनकम है ना बेटा, पीएनएल में डाल, क्यों नहीं? यूटिलाइजेशन का बात की तरह पहले पैदा तो होने दे, बच्चा पैदा नहीं हुआ इसको हम इंजीनियर बना, अरे काहे? मेरा सवाल वही है, इनकम बोला तूने तो क्यों नहीं दिखा सकते बेटा? सर मतलब क्या? सोच, गर्लफ्रेंड का हाथ मांगने गया, उसका बाप सी है, वो बोले 5 रुपया इनकम है तो पीएनएल में क्यों नहीं गया? तो आंसर दे राइट और शादी करो। अभी सोच कैसा क्रिटिकल सिचुएशन। अरे उसको वही तो चाहिए, पैसा तो वही चाहिए, तो मांगने क्यों गया हाथ? नहीं मांगने गया सर। Who raised hand? Dave, say. तो जो हर साल आएगा वही पीएनएल मिल जाएगा, श्योर ना? 10 बार सोच, मतलब मैं तोप के साथ खड़ा है अभी तो। ठीक है, तो जब तू किसी एक साल में कोई फिक्स्ड एसेट बेचता है, उसमें अगर कोई प्रॉफिट होता है या एक बार कभी कुछ तू बेच के अगर इनकम कमाता है तो वो पीएनएल में नहीं जाएगा तेरे हिसाब से। तो अभी अभी खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। आर यू सजेस्टिंग दैट द थिंग्स दैट गो टू पीएनएल आर दोस थिंग्स व्हिच आर रिकरिंग इन नेचर और नॉन रिकरिंग विल नेवर गो टू पीएनएल? That's what the criteria is for classification of what goes to PNL, what not goes to PNL. Okay, recurring है तो डाल दो PNL में। मतलब मैं अगर हर हफ्ते फर्नीचर खरीदता है, ये हफ्ते मैंने टेबल खरीदा, दूसरे हफ्ते मैंने एक चेयर खरीदा, तीसरे हफ्ते और एक चेयर खरीदा, चौथे हफ्ते में एक और चेयर खरीदा, डाइनिंग टेबल बड़ा है। एवरी वीक एवरी मंथ अगर मैं एक एक आइटम ऑफ फर्नीचर खरीदता है तो ये रिकरिंग है, तो उसको पीएनएल में डाल दो ना, मैं डाल दू पीएनएल में एक्सपेंस बोल के। इन्वेस्टमेंट मतलब पीएनएल में डालते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है, आउटपुट है हमारे बिजनेस आउटपुट।
What are you trying to say? Relax and say. ये बहुत घूम मैं ट्राई करूंगा, मैं नहीं बनता, मैं उधर ही कवर कर देगा, फिर मजा आएगा। जस्ट स्टैंडिंग एक झटका है, एक बार आंसर मिल गया ना, इट बिकम सो सिंपल। अच्छा ये तो ऐसा है, चलो क्या है, 5 रुपया बस, ये गेन है, इनकम नहीं है, गेन है। कौन से टाइप का गेन है? सवाल खत्म होएगा बेटा, जब आंसर मिलेगा तब सवाल अपने आप खत्म हो जाएगा। कौन से टाइप का गेन? I'll give that credit to this. It's a capital gain, not a revenue gain. Why it's not a revenue gain? Because it is not generated from the core business activity. Core business activity, if you are a manufacturer, goods बना के बेचना तेरा core activity, ये उससे पैदा हुआ है क्या? तो नहीं जाएगा, फिर ये तुम्हारा रेवेन्यू गेन नहीं है जो पीएल में जाएगा। जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट कभी कभी माना जाता है सर्टन सिचुएशन में, जाने दो सर, बट रेवेन्यू नहीं है, क्योंकि कोर एक्टिविटी के इससे पैदा नहीं हुआ, कोर एक्टिविटी के रिलेटेड किसी एक्टिविटी से पैदा नहीं हुआ। ये भलता ही कोई एक्टिविटी है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पैदा हुआ है, तो ये रेवेन्यू गेन नहीं है। क्या है? कैपिटल गेन है। कैपिटल वर्ड इसलिए नहीं क्योंकि कैपिटल के साथ है, कैपिटल मीन्स इज नॉट रिलेटेड टू कोर एक्टिविटी, इज रिलेटेड टू समथिंग एल्स। कैपिटल गेन है, इसलिए ये नॉर्मली जाना चाहिए किसी कैपिटल रिजर्व में। किधर जाना चाहिए ये? एवरी कैपिटल प्रॉफिट, एवरी कैपिटल गेन इज ऑलवेज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, अनलेस लॉ ने किसी और में डालने को बोला हो तुमको। अकाउंटिंग लॉजिक ये बोलता है कि एवरी कैपिटल गेन शुड गो टू कैपिटल रिजर्व, लेकिन बीच में लॉ घुसेगा, लॉ बोलेगा नहीं ये ठीक है कैपिटल गेन है, कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा है इसको अलग रख। ऐसा बहुत बार होएगा। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स, बहुत सारा रिजर्व बनता है एज पर लॉ, जो बोलता है कि नहीं ये कैपिटल का नेचर का है, लेकिन इसको कैपिटल रिजर्व में डालने का नहीं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक अलग अकाउंट बनाया, नोन एज सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या बोला जाता है इसको? मतलब प्रीमियम वर्ड तो अभी आया, इन लोग को मालूम था पहले से ग्रेजुएट्स को कि इसको एसपी बोला जाता है, एसपी में डाला जाता है, ये चिपक गया प्रीमियम पे। और जैसे ही पूछा ना प्रीमियम मतलब इसका नाम दिया गया सिक्योरिटीज प्रीमियम। इट्स अ प्रीमियम बिकॉज इट इज ओवर एंड अबाउ द फेस वैल्यू, दैट इज समथिंग गुड, समथिंग प्रीमियम। तेरा कंपनी इतना पावरफुल है कि तू फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा मांग रहा, लोग दे रहे, दैट्स अ प्रीमियम फॉर यू, एंड इट्स अ सिक्योरिटीज प्रीमियम। व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी? वॉचमैन नहीं। Security means, the word security defined in the Companies Act as it includes shares, debentures, bonds, ये सब आ गया उसमें। तो ये शेयर्स के ऊपर का प्रीमियम है, शेयर्स इशू करने के टाइम फेस वैल्यू से ज्यादा मिला है, तो शेयर प्रीमियम के बदले सिक्योरिटीज प्रीमियम। आर गेटिंग इट? यस और नो? श्योर? पक्का? व्हाट काइंड ऑफ व्हाट इज प्रीमियम? इट्स अ गेन। यस और नो? तो अगर 10 रुपए का शेयर 15 में इशू किया है, इट्स अ कैपिटल, 5 रुपए का प्रीमियम है, इट्स अ कैपिटल गेन। अकाउंटिंग कैसे? अच्छा कैपिटल गेन है, एंड एज पर कंपनीज एक्ट किधर जाना चाहिए? सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाना चाहिए। गेटिंग इट? चलो अब इसका एंट्री क्या आएगा समझो ना। क्या क्या स्टेजेस था? पहला एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का कितना रुपया था? 2 रुपया। नाउ लेट अस एज्यूम ये जो 5 रुपया है ना प्रीमियम का, वो एप्लीकेशन के साथ मंगवाया है। तो जब मैंने सबको बोला कि ये देखो एप्लीकेशन फॉर्म है, इंटरेस्ट है तो भरो, साथ में 7 रुपया देना पड़ेगा, 2 रुपया कैपिटल का, 5 रुपया प्रीमियम का, अभी दे दो। इंटरेस्ट है तो भरो फॉर्म, वरना निकलो। पर आई एम आस्किंग, आई एम डिमांडिंग द प्रीमियम मनी एट द एप्लीकेशन स्टेज। नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड यू विल पे मी द मनी। क्या एंट्री आएगा बेटा? बैंक अकाउंट है, कितना कितना कितना? वेरी गुड, 7। मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, वीरल शाह, मेरे को 1 शेयर चाहिए, तो एप्लीकेशन मनी कितना? एप्लीकेशन मनी कितना है? अगर मुझे लेजिटिमेट प्रॉपर एप्लीकेशन सबमिट करना है तो कितना पैसा देना पड़ेगा? तो बैंक पे कितना पैसा आएगा? तेरी बारात में आके तो 2 बोल रहा है,
पर क्यों, जब मैं डेबिट का बात कर रहा है तो क्रेडिट का क्यों बात कर रहा है? मम्मी पूछेगी 1 2 3 से कौन सी पसंद है, तो हाँ बोले, नो प्रॉब्लम, नहीं इट्स ओके, हो सकता है तीनों पसंद है। बंदे ने सोच लिया बर्बाद होने का, तो अपना क्या होता है, हाँ बेटा कर ले, हाँ। ये मम्मी को मत बोलना, एक बार पापा को बोलना कि पापा तीनों पसंद है, पापा बोले ऑल द बेस्ट। विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्या लाइट चलो। तो जब बैंक में 7 रुपया आ रहा है तो काहे 2 रुपया बोल रहे हो? हाँ तो ज्यादा दे, मेरा क्या रहता है। तो बैंक में कितना पैसा आएगा? 7 रुपया। तो अभी बोल, हाँ कितना? हाँ वेरी गुड, शेयर एप्लीकेशन 7 रुपये। Let's ask you. Starting with different sitting besides you. Don't know. What does your instinct say? What is that comes to your mind first? कर सकते हैं. Follow your instinct. अलग कर सकते हैं. देव. क्यों? नहीं, अब करना ही पड़ेगा. जब तेरा एप्लीकेशन जाएगा, जब तेरा प्रोस्पेक्टस रहेगा तो उसमें ये सब लिखना पड़ता है कि एप्लीकेशन में इतना, अलॉटमेंट का इतना, सब प्रोस्पेक्टस में लिखा रहेगा, कॉल तक का डिटेल्स. यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल द डिटेल्स बिफोर दे इवन गिव द एप्लीकेशन. बाद में नहीं होने वाला. कॉल का फिर बाद में हो सकता है, एप्लीकेशन तो तभी का तभी रहेगा. कॉल जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे मंगवा लेंगे. अलॉटमेंट का पैसा जितना जरूरत पड़ेगा उतना मंगवाएंगे, लेकिन एप्लीकेशन को तो बोलना पड़ेगा ना कि भाई तू 7 रुपया दे रहा है तो इतना प्रीमियम है, इतना वो तो चिंता मत. सारा मेजोरिटी विंस के रात में बैठे हो कि ये स्टेज पे तुम लोग डिसाइड करोगे कि तुम्हारा गेन है. जब तुमको मालूम नहीं है कि शेयर्स इश्यू करने का है कि नहीं करने का, कितना करने का, कुछ पता नहीं है, कौन शेयर होल्डर है कौन नहीं है, किसका रिफंड है, और यहां पे तुम लोग अपना गेन मना रहे हो. मेरी बारात में बैठे हो, तुमको इतना लीगल प्रोसीजर समझाया कि पहला बैंक अकाउंट अलग आएगा, ये स्टेज पे पता नहीं है शेयर्स अलॉट हुआ है कि नहीं, अपना गेन अपना गेन. सीरियसली लड़की देखी नहीं, चौथे स्टेशन पे यहां से दिख रही है, ये घर बसा रहे हैं यहां पे. व्हाट इज द लॉजिक? When I'm explaining the process, there has to be some logic. You're transferring it to premium at a stage when you don't even know that bloody those people are your shareholders or no. So on what grounds are you doing it? अभी तुक्के लगा, सब चलती गाड़ी में चढ़ने वाले. उसने ईमानदारी से बोला उसको पता नहीं, ये चलती गाड़ी में चढ़ा. हाँ हाँ कह सकते हैं, मेरा दोस्त बोल. अंकल भी दाढ़े, अंकल को इरिटेट हो गया, अरे वापस सर समझाएंगे. झंड कहें कि खुद सोच पहले. So entry is bank to share application, no bifurcations at this stage. मालूम ही नहीं है प्रीमियम है, कैपिटल है, क्या है, कुछ पता नहीं है, शेयर है कि भी नहीं वो नहीं पता है, तो नो एंट्री. अभी आएगा सेकंड एंट्री. सेकंड एंट्री में शेयर अलॉट हो गया, तुमको शेयर दिया था, इनको नहीं दिया था. अभी इनका 7 रुपए में क्या बाइफरकेट करूं मैं, क्या प्रीमियम का कैपिटल, ये लोग है क्या, ये 7 रुपया रिफंड कर, खत्म कर, ये कोई नहीं है, मेरा लेना देना नहीं है. हमारा जो 7 रुपया उसको ब्रेक करना पड़ेगा. 2 रुपया कैपिटल, 5 रुपया प्रीमियम, तो रिफंड है ना. समझ में आ रहा है? ये स्टेज पे प्रीमियम ट्रिगर होएगा. तो क्या एंट्री आएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 7 रुपया 2 रुपया टू सिक्योरिटी. कैसे याद रखने का पता है? ये जो कैपिटल और प्रीमियम है ना, गर्लफ्रेंड याद रखना. दे आर लाइक गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड. दे आर ऑलवेज टुगेदर एंड ऑन द सेम साइड. ऑलवेज टूगेदर एंड ऑन सेम साइड. पहले एंट्री में कैपिटल आया था क्या? पहला एंट्री में कैपिटल आया था क्या? तो प्रीमियम भी नहीं आएगा. सेकेंड में कैपिटल आया, प्रीमियम तभी आएगा. एंड ऑन द सेम साइड क्रेडिट किया कैपिटल, तो ये भी क्रेडिट होगा. आर यू गेटिंग इट? ये लॉजिक का खाली एक ही एक्सेप्शन है, वो आगे आएगा तब समझाएगा. एक ही एक्सेप्शन है, वरना ये दोनों हमेशा साथ में रहेगा, दैट टू टुगेदर. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो दे आर लाइक नॉट लाइक हस्बैंड वाइफ. वो होते तो साथ में होते पर अपोजिट साइड्स होते. दे आर लाइक गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड.
मैं क्लियर? यस और नो? तो बाहर जाके बोलना तू मेरी सेकेंडरी स्ट्रीम, ऐसा नहीं बोलना है। सेकेंड अलॉटमेंट रेस्ट, राइट? अलॉटमेंट का कितना पैसा था? नाउ लेट अस एज्यूम कि अलॉटमेंट के स्टेज पे इन लोगों ने 5 रुपए का प्रीमियम मंगाया, एप्लीकेशन में नहीं मंगवाया, अलॉटमेंट में मंगवाया। समझ में आ रहा है? अलग अलग सिचुएशंस है। पहले वाले में क्या एज्यूम किया था कि एप्लीकेशन के साथ 5 रुपया मंगवाया। अभी क्या एज्यूम कर रहे हैं कि एप्लीकेशन में 2 रुपया आया, 5 रुपया अलॉटमेंट में। तो फिर अलॉटमेंट का एंट्री क्या होगा? सो व्हाट विल बी द एंट्री दैट विल पास? चलो फटाफट। शेयर कितना, डिमांड कितना करोगे? पूरा इधर लिखो, पूरा ऐसा लिखो। मेरे साथ मत चल तू यार, कैलसी यूज कर ले 3+5 के लिए। वो बोल रहा है पूरा, ये बोल रहा है 7 रुपया। चल क्या रहा है, दिमाग का दही कर रहे हो। शेयर अलॉटमेंट डिमांड कितना करोगे? आप सीधे बैठ गए, धीरे धीरे खुद ही चंद्र बन जाएगा पूरा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8 टू, हाँ बड़ा एक्साइट हो गए। हाँ बोलने दे दूसरे को। चल मैं तेरे को एक ऑप्शन देता हूं, यू कैन इंटरप्ट एनीवेयर एनीवन, कर सकता है। डिफेंड कंटिंजेंट लाइफ। वेरी गुड, मत चुप रहे। टू सिक्योरिटीज 5, गेटिंग इट? वापस कैपिटल के साथ आया वो। ये स्टेज पे हम लोग किससे डिमांड कर रहे हैं? मालूम है ना, शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर से जो पैसा आएगा वो कैपिटल और प्रीमियम। आई नो एट दिस स्टेज कौन शेयर होल्डर है कौन नहीं है। पहले वाले में नहीं था, यहाँ पे भी आएगा। अभी सेकंड में पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, नहीं मिला तो कॉल्स इन अरियर्स डेबिट। ये सब एंट्रीज तुम्हारे नोट्स में, डोंट वरी अबाउट दैट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सिमिलरली अगर समझो, हाइपोथेटिकली एज्यूम करो कि कॉल के साथ पैसा मंगवाया, के साथ कॉल से 5 रुपया कॉल का प्लस 5 रुपया प्रीमियम का, तो क्या एंट्री बन रहा है? शेयर कॉल अकाउंट डेबिट 10। मैं कर लेगा कैलकुलेशन। 5 टू शेयर कैपिटल 5, कैपिटल आया तो प्रीमियम भी आएगा। एंड देन पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं आया तो CIA डेबिट टू शेयर कॉल। CIA क्या होता है? कॉल्स इन अरियर्स। दिस थोड़ा बहुत समझा? कंटिन्यू।